Hello everyone, my name is Aishna and I am the Assistant Editor at CA Club India. So as you all know, the Union Budget 2021 was announced by the Finance Minister yesterday and various new changes have been inculcated. Thus, today we have with us CA Gauri Chadda and CA Ujjwal Jindal, who will be decoding the direct and indirect tax proposals of the Union Budget 2021. First of all, we have CA Gauri Chadda, who is a well-renowned tax expert and a lawyer. Running her own practice in Delhi, Gauri is known to always speak on behalf of the taxpayers. Before we start this session, I would like to give a quick disclaimer to the audience. This is a speaker session which will be followed by 2 Q&A sessions. So please comment any query that you may have in the chat box. Over to you, Gauri, now. Thank you. Thank you so much for inviting me and for the introduction. So we have, with the help of CA Club India, made a small presentation for you people because right now we had less time. So don't go by the presentation in totality. I would say that just hear me out. A presentation is basically just to be sure that we are not missing out on any point. However, I'm just covering a few points. Rest will be covered by Ujjwal. He'll join us at 6 p.m. Of course, I can see him here, but he'll start the webinar at 6. So I'll just share the screen with you people. So I hope everyone saw the and heard the budget speech yesterday. So in the end, I would like to, with the question and answer round, I would like to know your opinion also. How did you find the budget? Was it a good one according to you, or it was not so good, or maybe bad? Because everyone has their own point of view. I personally feel that the budget was just okay. It was not good. It was not bad. Of course, we understand that the government is currently having a very big challenge because of the pandemic. But if we talk about the taxpayers, the common man, they have not really gained anything. In fact, they have lost something if we talk about the PF thing. And whereas ease of compliance is concerned, they have worked upon that. They have tried to make things easier for senior citizens, for common man. They have concentrated on less harassment of the taxpayers. So according to ease of compliance and for honest taxpayers, things are good. But as such, in monetary terms, there is nothing much for the taxpayer. So let's start with the first topic, which is relief to the senior citizens. Now, if we talk about relief to the senior citizens, according to me, I'll give my opinion. This is not as such a very big relief. So what they have done is they have said that to ease the compliance burden of senior citizens who are of 75 or above age. So they will be exempted from filing the return of income. But minded, they are not exempted from filing tax. So first of all, I feel that in any case, filing of return for pensioner having only interest income and pension income is not that big an issue. Moreover, now what will be the consequence of this? See, usually pensioners who get pension from any authority, they were required to visit bank once a year to share their certificate, their records that they are alive, just to be sure that they get pension from next year onwards also. Now, the Modi government last year, or maybe last to last year, I don't remember correctly, they made everything online. They said that now the pensioner is not required to visit the bank and they will be required to do everything online. So this was a very good step. But now again they are saying now you have to visit bank. Now what will happen is they will visit the bank, the prescribed bank, the bank which the government will prescribe.
they will prescribe a lot of banks. Of course, it will not be just one bank. So now they will get pension in, suppose we are getting pension in SBI Bank, and we have an account in SBI branch, so we are getting interest income also from there. In this case, the pensioner will visit the bank. They will share the details with the banker. Banker will assess the income. He will assess all the deductions, standard deduction, chapter 60 deduction and everything, and they will compute the income. As soon as the income is computed, they will deduct the tax accordingly, the exact tax which is payable to the government, and then the pensioner is free from everything. He will basically he will not be required to file the income tax return. But in this case, now instead of filing the return of income, he is visiting the bank. First point. Second, the reason behind this is that they want to reduce the compliance burden, but according to me, they have not reduced the compliance burden to a very good extent. This is not a very good step. I mean, if they would have exempted them from income tax only, that would have been a better decision, I think. So basically, the main catch here is that they have written that you should be, the interest should be from the same bank. For example, if we are getting pension in SBI branch, the interest income should be from the same bank, because the senior citizens of 75 or more are eligible for this scheme who have income from pension or interest. That's it. And interest. That's it. Nothing else. If you have any other income, source of income, then you cannot enter this scheme. So then interest also should be from the same bank. If you have interest income from, suppose you have an account in HDFC Bank also, in this case, you are not eligible for this scheme. You will have to file the return of income. So this is not a very big ease of compliance. This is what I feel. Of course, then I'll take your views towards the end. I'll just read out the slide for you also. In order to ease compliance burden on senior citizens, pensioners who are of 75 years or of age or above, it is proposed to exempt them from the requirement of filing of income tax if the full amount of tax payable has been deducted by the paying bank. This exemption is proposed to be made available to such senior citizens only who have interest income apart from pension income. So I have shared with you the basic main point, which is the bank should be the same bank in which you are getting the pension. If you have account in any other bank and getting interest income from any other bank, in this case you will not be eligible to file the you should file the return of income. And of course, if the government comes up with any further clarification, we can then look into it. But right now, as of now, this is the situation. Next is setting up of dispute resolution committee. So in this case, your taxable income, your returned income, basically the income which you have showed in your return, should be more than 50 lakh, and the disputed amount should be less than 10 lakh. So in this case, who cannot go to DRC? First is search and seizure cases, which is section 132. Then survey cases cannot go to DRC, that is section 133A. And if the country has received, India has received any information from any other country under DTA, that is double taxation avoidance agreement, then that is section 90 and 90A. In this case, we cannot go to DRC. Now, what can DRC do? DRC will have the power to reduce or waive off the penalty, and also grant immunity from prosecution from this act. Now, here the question is, of course, I've explained who can go, but there is one more category which cannot go to DRC, which is if you are convicted under any other law. For example, I will share an example with you. There was a case in, I think, Surat, where they had a raid there at their premises, and what the SSC did, SSC left their dogs on the officers. So they were prosecuted in under IPC.
Now, if you are prosecuted under IPC, you cannot go to DRC. So you will be ineligible to go to DRC. So so these cases, they cannot go to DRC. And of course, if your returned income is 50 lakh and 10 lakh is the disputed amount. So this is where you can go to DRC. So I'll just read out the slide also for your convenience. Now it's for reducing litigation and to give an impetus to the dispute resolution for small taxpayers. A dispute resolution committee is proposed to be constituted. A taxpayer having taxable income of up to 50 lakh, it is actually more than 50 lakh, and disputed income of rupees 10 lakh shall be eligible to approach the committee. For ensuring efficiency, transparency and accountability, the procedure of the committee will be conducted in a faceless manner. Consequently, the settlement commission shall be discontinued from 1st February 2021. However, the pending cases shall be decided by an interim board if opted by the applicant. Of course, you must have studied about settlement commission. So that has been discontinued now. The settlement commission is history now for you people from 1st of February 2021. Next is reduction in time limits. This is again, it has a positive and a negative aspect also. Positive is, of course, now 6 years time limit has been reduced to 3 years. But if you talk about negative, then the people who do tax evasion, who willfully evade taxes, they will have a relief now, because only 3 years are there with the department to open the cases. So I'll share the sections now. In section 148, you get the notice. Section 147 is the assessment section. And if we talk about 149, that is time limit. Here it is whether amendment has come in. That is section 149. Now, generally, what happens is, generally, the reasons are where the assessing officer has reasons to believe that you have evaded taxes. Now, of course, reasons can be many. Reasons are quite different. And now there is another section which has been introduced, that is section 148A. So before preliminary investigation under 148, the SSC will be given an opportunity of being heard also, so which will be under 148A. This is a new section. So in this case, in this section, it will be decided whether the case should be opened or the case should not be opened under section 148. So again, 148 will not be applicable in search cases, and 148 will have specified authorities only, which can be used in section 148, and specified authorities are principal commissioner and principal director, or commissioner or director. So now what they have done is, they have basically reduced the 6-year time to 3 years. And for this, the approval, the basically 148 section will be there for where principal commissioner, principal director, or commissioner or director will take a decision. And if the period is for more than 3 years, just in case, then the decision will be taken up by principal chief commissioner or principal director general. So basically, this is, I would say, a positive and a negative step. And I'll just read out the slide also for you people. So for reducing litigation and to give impetus to the dispute resolution for small taxpayers, a dispute resolution committee is proposed to be constituted. A taxpayer reduction in time limits. In order to reduce compliance burden, the time limit for reopening of assessment is being reduced to 3 years from the current 6 years from the end of the relevant assessment year. Reopening of up to 10 years is proposed to be allowed only if there is evidence of undisclosed income of 50 lakh or more. So if the undisclosed income is not more than 50 lakhs, 10 years will not be applicable. 10 years is applicable only if in case of serious frauds, that is the amount of undisclosed income is above 50 lakh. Further, it is proposed to completely remove a discretion in reopening, and henceforth reopening shall be made only in cases flagged by system on the basis of data analytics objections
and CAG and in search and survey cases. Further, in order to bring certainty in income tax proceedings at the earliest, it is also proposed to reduce the time limit for general assessment or processing of income tax return by 3 months, and also for filing of returns. So now next is that another change which they have got is that they have made the appellate tribunal ITAT also faceless. So if we talk about ITAT, earlier only assessments and appeal were made faceless. Now even ITAT has been made faceless. So now we can say cases related to facts are now completely faceless, because cases related to facts cannot go to high court. So only interpretation of law can go to high court or Supreme Court. Of course, writ is another option. Of course, that's a separate thing. But if you're not talking about writ, then cases related to facts can go to are now totally faceless. So basically, the amendment has been made in has been made in taxation and other laws, and the reason being for better transparency and accountability. So now we can say that everything has been made faceless, but if you ask my view, I think that they should have given some more time to the department, because right now other things have been made faceless, but I don't know how successful they are. People are facing some issues, so that those issues should have been considered first, and then ITAT should have been made faceless. But still, I would say it is a welcome step, because if even ITAT is faceless, then the harassment of taxpayers will be reduced. So this is, I would say, more or less a welcome step. So next is so if an urban cooperative bank is reorganized into a small finance bank, so the basic concept is that this will not be considered as transfer, and if it is not transfer, then there will be no capital gain tax. So in order to facilitate the transition of UCBs to SFBs, UCB is Urban Cooperative Bank and SFB is Small Finance Bank, it is proposed to provide tax neutrality for the transition of UCBs to SFBs, and the UCB shall not be required to pay capital gains for the assets transferred to the SFBs. The reason being that it is not being considered as transfer. So that is why there will be no capital gain tax. Now, if we talk about tax incentives for affordable housing, so you people must be already aware that there's a section called Section 80 EEA, where we get additional deduction of 1.5 lakh rupees under this section. And there are few conditions. Conditions are basically that you should be first time house buyer. You should take a loan from financial institution. The stamp duty value for the house should be 45 lakh or less, circle rate basically. And the area, this area has been mentioned in the memorandum, it is not there in the act, that the area should be 60 square meter in big cities, the cities have been mentioned there, and 90 square meters for smaller cities. So this scheme was ending on 31st March 2021. Now this has been extended to 31st March 2020. So basically this is an extension of 80 EEA, and we were anyways expecting this extension. This was needed. However, I feel that they should have given extension under section 24, which is used by commonly by all these mostly SSCs. And this section is not common because this is just for the first time home buyers with so many restrictions, 45 lakh circle rate, 60-90 square meter area. So I personally feel that they should have given an increase in deduction for section 24 rather than of course 80 EEA should have been extended, but in
addition to this, they should have given extension to section 24 also, but that has not been given. So let's stick to this. I'll read out this slide also for you people. In order to incentivize purchase of affordable house, it is proposed to extend the eligibility period for claim of additional deduction for interest of rupees 1.5 lakh paid for loan taken for purchase of an affordable house to 31st March 2022. In order to increase the supply of affordable house, it is proposed to extend the eligibility period for claiming tax holiday for affordable housing project by one more year to 31st March 2022. Then another amendment for affordable renting housing project. So they have given tax incentives in order to promote affordable renting housing for the migrant workers. It is also proposed to allow a new tax exemption for the notified affordable renting projects. So in this case, the section is 80IBA, where gross total income includes income from development and building of affordable housing project, where 100% deduction is given. So project should be approved between 1st June 2016 till 31st March 2021 as per the earlier section, where now they have increased the time limit. They have given you time limit till 31st March 2022. So we can say that the project should be approved between 1st June 2016 to 31st March 2022. So deduction under section 80IBA will be allowed to such rental housing projects which are notified by central government. So they will notify some cases. Okay, so now there have been some relaxation for NRI incomes of retirement benefit account. So in order to remove the genuine hardship faced by the NRIs in respect of the income accrued on foreign retirement benefit account due to mismatch in taxation. So what used to happen is that the NRIs used to, because in India, I'll explain in a better way. In India, the income is chargeable to tax on accrual basis, and in foreign country, it is chargeable to tax on receipt basis. So the income accrued in India was basically there was a disparity between the both the things. So to curtail that, this provision has been brought. It is proposed to notify rules for aligning the taxation of income arising on foreign retirement benefit account. So they will notify rules just to avoid this hardship on the NRIs, where their income was taxed on accrual basis in India and receipt basis in their country. So just to avoid this, they will notify rules. So let's not go into much detail because the rules are yet to be notified. Now there's a change in minimum alternate tax also. Let me just take out the here, what was the problem? The first problem was that in current year, the past year's income adjustment was not allowed. So this is the first reason where because of which this provision has been changed. The second was that the dividend income taxable in the hands of the shareholders now, so the foreign of now foreign company getting dividend in book was included in book profit. So this is to be excluded. So basically, in order to provide relief to the taxpayers in whose case MAT liability has arisen in the year of repatriation of account of APA or secondary adjustment, which I've just mentioned, it is proposed to provide relief by aligning the MAT provisions with the year of taxability of such income. So this was, I would say, a minor change in MAT provision, which was, of course, needed a lot. And this was, there was a disparity between both the things, and they have changed it. So there's another point where the interest income earned on Provident fund has been made taxable. Till now,
PF was under triple E category, exempt, exempt, exempt. Now PF will be under exempt, taxable, exempt category. So what has happened is the government has said that usually whatever interest you earn on your provident fund, it is totally exempt. Now, when the employee's contribution to PF exceeds 2.5 lakh rupees, so you will basically pay tax on more on the amount which you have invested over and above 2.5 lakh. I'll just share a calculation with you people, just to for your better understanding. So if you have, say, invested 3 lakh rupees, so the extra amount is 50,000. So on 50,000, if we assume that the interest rate is 8.5%, the interest income will come to around 4,250. Now on 4,250, if we calculate 30% tax, I'm calculating 30% tax because majorly only a person earning above 10 lakh can contribute 2.5 lakh to PF. So if you are earning less than 10 lakh and you fall under category of 20%, this rate will be 20%. However, this is little impractical. So if we talk about 30%, because this interest will be charged on slab rate basis. So then interest will come to 1,275 rupees. Now, if we add 4% cess, this will come to 1,326. So if we are depositing 3 lakh to PF employee contribution, you will have to pay 1,326 rupees as tax. This will be additional tax burden on you. And I'll just read out the slide also. In order to rationalize tax exemption for the income earned by high income employees, it is proposed to restrict tax exemption for the interest income earned on the employee's contribution to various provident funds to the annual contribution of rupees 2.5 lakh. This restriction shall be applicable only for the contribution made on or after 1/4/21, because of course the budget has been presented yesterday only, and it will be applicable from financial year 2021 to 22. Scope of Vivad Se Vishwas has been extended. This is a very small change. I'll just read out the slide quickly. With a view to remove any ambiguity, it is proposed to amend the provisions of Vivad Se Vishwas to clarify the original legislative intent, for which the definitions of appellant, disputed tax and tax area are proposed to be amended by way of removal of doubts in the bill. So there's a change in the definition which you can just go through. The said amendments are proposed to take effect from 17th March. So even the date has been changed. The date to opt for Vivad Se Vishwas scheme is now 28th till 28th February 2021, and the payment date still remains the same. It is 31st March 2021. Now, this is also another small exemption where for LTC cash scheme, it has been extended. What is LTC cash scheme? Last year, while announcing a few smaller budgets, I would say, the government had introduced this LTC, where they said that if due to the pandemic, you were not allowed to travel within India, because the people who get LT are allowed to travel within India anywhere. So what we can do is we can give you cash equivalent to that amount, and you can spend that cash 3 times more. You have to spend that cash on any item which has GST of more than 12%. So if you spend that amount on to buy any goods or services which has 12% GST or more, you can get your LTA exemption. This is basically called LTC cash scheme. So in order to provide relief to employees, it is proposed to provide tax exemption to the amount given to an employee in lieu of the leave travel concession, subject to incurring of specified expenditure. So specified expenditure is on any goods and services which have GST of 12% or more on applicable on them. So this is another change where the infrastructure debt funds are can now issue zero coupon bonds. So earlier in zero coupon bond definition,
What was there? Infrastructure capital company, infrastructure capital fund, public sector company, and scheduled bank. Now, with they have included infrastructure debt fund. So now even infrastructure debt fund can issue zero coupon bonds. So in order to allow funding of infrastructure, it is proposed to make zero coupon bonds issued by notified IDF eligible for tax benefit. So these are the few amendments which were can have a question answer round, and do share your views on the budget. How do you find the budget? And it was good, it was bad, it was okay. So I would like to hear your views also, along with the questions which you must be putting up. Okay, Yeah, so Aishna, you there? we can take some questions now. We have a lot of them. Do you think there is a need to reduce the time limit from 10 years for reopening of cases in serious tax fraud cases? No, so I don't think so. This should be done. Otherwise, there will be a lot of people, and it's a good point also. It's a bad point also, because people will now evade more taxes. They know that within 3 years, if nothing has happened, we are just safe. So it will reduce harassment also, but in cases where people have committed fraud willfully, will also get away. So I don't think so that there is any need to reduce that 10-year time period also. How exactly are the taxpayers benefited when extension is given for eligibility period for claiming tax holiday for affordable housing? Can you repeat the question? How exactly are the taxpayers benefited when extension is given for eligibility period for claiming tax holiday for affordable housing? Should I write it in the chat box also? It depends. No, I've got it. So, see, it depends how the builders are basically transferring the benefit to the common man. So, if they are getting tax holiday, say 100%, in this case, they are getting 100% deduction. So, they will basically save tax. So, that saving should be transmitted to the common person who's buying that affordable house. So but I am not very sure that in reality how much is being done and how much is not being done, but it should be, it is like I would say, uh, in GST, if the rate is reduced, we expect the manufacturer to pass on the benefit to the consumer. Same way, in this case also, we expect that the manufacturer, the builder, passes on the benefit to the common man. But I don't know how feasible, how basically they do it, because I doubt that they actually pass on the benefit. Uh, do you think there was a need of relaxations in some other deductions as well? Can you just pass on the written part, because I can't hear you. Just one second, I'll just copy it in the chat box. Do you think there was a need of relaxations in some other directions as well? Yes, of course, I really think so. I was doing many shows on many news channels since 2-3 days, and on every channel I said the same thing, that at least medical insurance, and because, or maybe they can allow some expenses under medical, because people have really spent a lot of money due to corona, and they will next year also, it is expected that they will have more burden on health issues. So there should have been a deduction for that. Moreover, I think that
this new regime of taxation which was introduced last year is a total failure, and I personally don't know many people who have opted for that scheme, who will basically opt for that scheme. And next year, of course, we'll see a data of how many people have opted, and then we can say that yes, I was right. But because that scheme is a failure, I would expect I was expecting the government to make that scheme more rational rates, nothing of that sort was done, of course. Okay. And one question is there, will DRC also be faceless? Again, I can't hear you. Just one second. I'll just keep typing this in the chat box only. Yeah. Right now, to be honest, I am not sure. I had put up this question. The question is, will DRC also be faceless? So I had inquired at a few places that will DRC also be faceless? Although I doubt that it is faceless, but I am not sure, so I don't want to comment on that. It is too early to say anything, because yesterday the budget was released and today we are doing the webinar. So I hope you understand that I had very less time to prepare for it. I am not sure. I have raised a concern to many people and I have asked, will it be faceless? But right now, no one is sure. So I don't want to comment on that. Okay, next question is, do you think India should also charge income on the receipt basis to be aligned with foreign countries? Um, See, anyways, India usually copies law from other countries only. We don't make laws. So copying this will also, I mean, this should not be a problem. But of course, there must be some issues in that, which because of which India has not copied this. But I mean, they can do so. Is charging tax on Provident Fund of employees' contribution of more than 2.5 lakh correct? What was the need for this move? Yes, it is correct. I mean, okay, you are asking my point of view. So, see, personally, if you ask me, I don't think you should invest so much amount in PF. I personally think that you can have better options. Of course, it's a safe game to play, but people contribute a lot of money to PF, and it has a very long lock-in period. I think you should opt for ELSS, or maybe you should opt for other mutual funds, or maybe equity directly into equity, or you can look for other better debt options if you are a debt person. But I don't think so there is any need to invest so much amount in PF. So I mean, it's fine even if they are charging, and they are charging over and above 2.5 lakh. So if a person is investing more than 2.5 lakh in PF, of course he is earning a lot of money. So if he is earning a lot of money, I don't think so there's any problem in charging a little bit of tax on PF. That's this provision. I think it's fine. Senior citizens having FD in different bank accounts, how can they calculate TDS? So see, if you have FDs in different bank accounts, in this case, you have to file your tax return. You cannot go to the bank and they will not calculate the tax for you. So this is what I was trying to explain you people, that this is only for the senior citizens who have income from pension and interest from the same bank. If you have FDs in different banks, then you are liable to file your return of income. This is the catch. So government focused on public spending more, it will give big push to the pandemic hit economy. It's a he's just trying to he or she trying to talk about part A. I agree that part A was better than part B. See, the same on the stock markets, because the Sensex and Nifty rose like anything yesterday. Is senior citizen want to visit all banks? No, only one can get the pension. So if you have to visit all banks, you have to visit all banks.
to file your return of income. This is what I have understood from the memorandum. They have very clearly written that you're getting your, in this case, you are required to file your income tax return. Otherwise, if you have accounts in many banks, you are out of this scheme. You still have to file your return of income. So this is what I was trying to explain in the beginning also. Budget, I think it was a good step to remove dividend tax, because if I am earning dividend and my income is paying dividend distribution tax, and it is paying dividend distribution tax or at a same rate for all the holders, equity holders. So if I am earning less than 5 lakh, if you are earning more than 10 lakhs, so the burden should be different. I should not pay any tax. You should pay 30% tax. This is how direct tax goes. It is a progressive tax. So this is how it should be. So I am pro this decision of removing dividend distribution tax. However, it was done last year. Then this provision is useless, of course, and nobody can utilize that benefit. This someone is saying that there's a bandwidth problem with me with my internet. Anyways, any other question on the YouTube, Aishna? No, I think I've sent all the questions in the chat box only. So I think So we've answered. some people had written one point of view is bad the budget, how they feel the budget is. Let me just quickly see that. No, I think there was just one reply from that part that I think it was there on Zoom only, and the person wasn't very happy with the budget. So I think people are just right now maybe just seeing what the budget has to Someone is offer. saying so. I was saying no on the budget. No, so actually maybe people are just right now seeing what the budget has to offer, and like the budget just came yesterday. So maybe there aren't many views right now. And okay, No so I benefit to think individual. So of course, there is no benefit going for individuals. okay, so I think we have no further questions right now, and we've answered most of them. So thank you so much, Gauri, for this session. And now I think we can. And now I think we can move on with the second part of the session with CA Ujjwal Jindal. And so I would just like to give a quick introduction of Ujjwal as well. So he's the founder at UJ Legal LLP and is an experienced professional in the field of direct and indirect taxes. And going forward, I would also like to request all the participants to please put down any question that you may have in the chat box, and we will be answering that as well. So Ujjwal, could you please just switch on your camera, and over to you now. Yes, I'm visible, Jaishna. Yeah, right, you are. Thank you so much, CA Club India, once again for inviting me here. And hello, everyone, to our exclusive Budget 2021 session. Gauri ma'am was, as usual, perfect in answering all the queries and everything that was in the first part of the session. I'll be taking up basically the provisions from the direct tax, indirect tax, and the company's matter as well. Being a CS, I cannot ignore the company aspect that has been given by the Finance Minister. So before starting our discussion, I shall first congratulate all the newly qualified chartered accountants, because yesterday was the day for the budget and also for the results of our beloved institute. All of you have prepared really well and got good results. I could see many posts on my LinkedIn wall and Facebook. Many have passed. It has been a tremendous results. Congratulations to each and every one of you.
And those who cannot make it this time, please don't lose hope. There is always scope of improvement. And yes, definitely when you'll be appearing for the next session, you'll be able to clear it. All the best for that. So now beginning with our discussion with the budget. So there has been a myth about the budget that it was good, it was bad. I have said the word myth because both of the assumptions are, both of the point of views I am disagreeing with. It was a neutral budget, and my view on the budget is also neutral. So categorizing this budget, like what the type of budgets are, तो हम लोगों के पास दो टाइप के बजट यूजुअली आते हैं. एक होता है सेविंग बजट और दूसरा होता है ग्रोथ ओरिएंटेड या ग्रोथ फोकस्ड बजट. अब सेविंग बजट की अगर हम लोग बात करें, हम लोगों को सिखाया जाता है बीइंग इन इंडिया बचपन से ही कि आप उतना ही पैसा खर्च करें जितना आप कमाते हैं. मतलब आप आश्रित ना रहें, आप डिपेंडेंट ना रहें बोरिंग्स पे, लोन्स पे. आप जितना कमा रहे हैं उसमें से आधा हिस्सा तक आप स्पेंड करिए और आधा हिस्सा आप सेव करिए. यही हर इंडियन की टेंडेंसी है और यही एक फाउंडेशन बना इंडिया का. क्योंकि बाहर के कंट्रीज में हम लोग अगर देखते हैं, सो दीज पीपल आर अर्निंग एंड स्पेंडिंग एवरीथिंग, दे डू नॉट बिलीव इन सेविंग्स. तो इंडिया के जो भी लाइक लास्ट ईयर्स में बजट्स आए, दे वर अ डेफिसिट बजट. वी ऑल नो कि स्पेंडिंग्स हमेशा ज्यादा होती थी कलेक्शन से. इस बार के बजट में बेसिकली अगर कंसिडर करें तो 2020 का जो पूरा साल गया है, पीछे का कैलेंडर ईयर जो गया है, पूरे वर्ल्ड के लिए वो बहुत ही डिफिकल्ट ईयर था. इवन फॉर इंडिया इट वाज नॉट एन एक्सेप्शन एंड ऑल द सिटीजंस आल्सो. तो गवर्नमेंट भी बहुत बड़े फिक्स में थी एंड सिटीजंस भी बहुत बड़े फिक्स में थे. अब इकोनॉमी को पुल बैक करने के लिए गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शंस थे. या तो वो एक सेविंग्स बजट लेके आए जिसमें वो खर्चों को कम कर दे, क्योंकि इनकम्स ऑलरेडी कम है. उसका इम्प्लीकेशन क्या निकलता कि जो इकोनॉमी बूस्टर है वो इस देश को नहीं मिलता. बिकॉज अगर आपने अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर दिया, आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज को कम क्रिएट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फैसिलिटीज पे कम पैसा खर्च किया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम किया, तो इकोनॉमी तो आपकी बूस्ट हो ही नहीं सकती. तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक दूसरा पैरेलल रास्ता जो था बजट का वो चूज करा, जो कि था ग्रोथ फोकस्ड प्रोग्रेसिव बजट, जो कि मैं इसे कहूंगा. ग्रोथ फोकस्ड प्रोग्रेसिव बजट में क्या होता है कि वी हैव मोर फाइनेंसेस इन बाय वे ऑफ बोरोइंग्स एंड मोर एक्सपेंडिचर. हम लोग बोरो भी ज्यादा करते हैं, खर्चते भी दबा के. तो उससे होता क्या है कि धीरे धीरे करके जो इकोनॉमी है वो रिवाइव कर जाएगी. बिकॉज अगर आप इन्फ्यूजन डालेंगे किसी चीज में भी फंड्स का, सो वहां से रिकवरी आनी शुरू हो जाएगी एंड दैट रिकवरी वुड मेक अप फॉर द डेफिसिट. यही बेसिकली नोशन फॉलो किया गवर्नमेंट ने, और यही नोशन फॉलो किया था यूएस की गवर्नमेंट ने व्हेन मिस्टर ट्रम्प वाज द प्रेसिडेंट देयर. तो उन्होंने भी यही चीज फॉलो करी थी. दे टुक लोन्स एंड दे इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, और इससे धीरे धीरे करके इकोनॉमी बूस्ट होगी. बूस्ट होने से धीरे धीरे करके पैसा आएगा एंड वो सारा पैसा जो है उस लोन को और उसके ब्याज को रिकवर कर देगा. तो ये था इस बार का बजट का टाइप, जो था ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोग्रेसिव बजट. और सब लोग मुझसे पूछ रहे थे दैट व्हाई द स्टॉक मार्केट्स रोज सो मच. तो उसका भी एकमात्र यही रीजन था कि जब भी आप इकोनॉमी की ग्रोथ पे फोकस करेंगे तो स्टॉक मार्केट का तो उस पे ए प्लस इम्पैक्ट आएगा ही आएगा. इसलिए जो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही थे, उन्होंने जम के इस चीज को दिखाया. दूसरा एक कारण स्टॉक मार्केट्स के बढ़ने का ये भी था कि सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार, क्योंकि हालात बहुत खराब रहे, तो एवरीवन वाज एंटिसिपेटिंग कि सरकार शायद कुछ लोगों से या कुछ सेक्टर के लोगों से कुछ ज्यादा टैक्स रेवेन्यूज खींचे बाय वे ऑफ टैक्सेस और सेसेस और अदर एडिशनल लेवीज. लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया. सरकार दोनों ही मामलों में एकदम न्यूट्रल रही. उन्होंने ना ही हमें कुछ ज्यादा एक्सटेंड किया और ना ही हमसे कुछ लिया. सो दिस हैज बीन अ न्यूट्रल बजट. तो बट अगर आप सरकार की मंशा को समझें, इस टाइम पे भी अगर सरकार ने हमसे कोविड सेस, जो कि सब लोग कह रहे थे कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स पे या फिर जिनकी इनकम जो है 1 या 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है साल की, उनसे लेंगे ही लेंगे. इनफैक्ट सरकार ने वो भी नहीं लगाया है. सो सरकार हैज, मतलब मेरे हिसाब से द गवर्नमेंट हैज डन अ रिमार्केबल जॉब. उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर को फाइनेंस किया है बोरोइंग से. वो बोरोइंग्स और अपने ब्याज के साथ वो पे ऑफ कर देंगे आने वाली इकोनॉमिक ग्रोथ से. सिर्फ ऐसा ही नहीं, इन लोगों ने इस बजट के अंदर प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट पे भी बहुत बड़ा ध्यान दिया है.
द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डिसइन्वेस्ट इन 2 banks, प्राइवेटाइजेशन ऑफ 2 banks एक्सेप्ट फॉर IDBI, एंड साथ ही वो लोग सोच रहे हैं कि एक PSU को भी वो डिसइन्वेस्ट करें, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। इस बार का इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट बजट जो सरकार ने लगाया है वो 1,75,000 करोड़ रुपए का लगाया है। अब 1,75,000 करोड़ तो गवर्नमेंट जो है वो यहीं से मेकअप कर जाएगी। तो आप देखिए बड़ा ही प्लान्ड और बड़ा ही सिस्टमटाइज बजट है, जिसमें हम लोगों से भी कुछ ज्यादा पैसा नहीं डिमांड किया है, लाइक फ्रॉम द सिटीजंस, एंड उसके बावजूद भी दे हैव गिवन इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। ये सारे एस्पेक्ट्स गवर्नमेंट ने एकदम बना के रखे हैं। अगर हम 2020 की बात करें तो पूरे 2020 के साल में हम लोगों ने मार्च से ही देखना शुरू कर दिया था कि छोटे छोटे मिनी बजट्स आ रहे थे। अगर मैं मिनी बजट्स की बात करूं तो पहला मिनी बजट था ये प्रधानमंत्री गरीब किसान योजना के रूप में। सेकेंडली उसके बाद 3 आत्मनिर्भर भारत पैकेजेस आए, ANB पैकेजेस जिसे हम कहते हैं। इन अनाउंस ये अगर आप पैकेजेस को हम लोगों ने पूरा जब डिकोड किया था CA क्लब इंडिया के साथ ही, तो there were many points, many relaxations, many exemptions that were provided or extended to all the people. उससे सब लोगों ने फायदा कमाया। इसी में LLP सेटलमेंट स्कीम भी आई, ITR की डेट्स भी बढ़ाई गई, TDS के रेट्स भी 25%, TCS के रेट्स भी 25% से कम किए गए, एंड सो ऑन। इतने सारे बेनिफिट्स देने के बाद 2021 के इस बजट से मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं। इनफैक्ट आई वाज वरिड कि सरकार शायद हम लोगों के ऊपर एडिशनल लेवीज ना लगा दे। मतलब मैं बेसिकली वरिड था इसके लिए नहीं दैट इंसेंटिव्स आ रहे हैं, आई वाज मोर वरिड कि हम लोगों से कुछ शायद सरकार खींच ना ले। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट चली, बिकॉज एवरीबडी वाज एंटिसिपेटिंग कि गवर्नमेंट जो है वो इस बजट में हमसे कुछ मांगेगी, खींचेगी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रेवेन्यू, क्योंकि सरकार को दी चाहिए। वी ऑल अंडरस्टैंड दैट। हम लोगों की अर्निंग श्रिंक हुई है, गवर्नमेंट की भी ऑब्वियसली अर्निंग श्रिंक हुई है, बट इस फिक्स में भी उन्होंने हम लोगों से कुछ एज सच रिकवर नहीं किया। प्राइमा फेसी हमें ऐसा ही लगता है। आज की डिस्कशन अभी हम जब करेंगे तब आपको पता लगेगा कि क्या गवर्नमेंट ने हमें बिल्कुल ही छोड़ दिया है या फिर उन्होंने भी हमसे कुछ ना कुछ लिया है। तो मैं बेसिकली कहना चाह रहा था कि 5 मिनी बजट्स तो ऑलरेडी 2020 में आ ही गए थे, ईयर 2020। अब उसके बाद जब ये वाला बजट आया तो ये बजट की जो स्पीच रही ये हमारी 2 घंटे से कम की रही। बजट स्पीच वर्ड फॉर्मेट PDF फॉर्मेट के हिसाब से जस्ट 64 पेजेस की थी, ठीक है। हालांकि बजट का मेमोरेंडम 106 पेजेस का है। इसका मतलब उसे देखते ही हमें पता चल गया था कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के प्रपोजल्स में मुश्किल से 10 पेजेस थे, बट मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द फाइनेंस बिल जो कि पार्ट बी ऑफ द बजट पे बिल्कुल आधारित रहता है वो 106 पेजेस का था। तो मैं समझ गया था द डेविल लाइज इन द डिटेल्स जैसे कहते हैं। तो इसका मतलब जो बताया गया था वैसा कुछ था नहीं, जैसा कि हमेशा होता है। जैसे गौरी मैम ने भी पीछे अभी बताया कि आपको 75 ईयर्स जिनकी एज है या उससे ज्यादा की एज है, दे हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न्स, बट दैट इज एन आई वॉश। अगर आप उसके अंदर प्रोविजंस को ध्यान से पढ़े, मेमोरेंडम को ध्यान से पढ़ा जैसा कि मैम ने बताया, तो उसके अंदर यू विल कम अक्रॉस कि भाई वो स्पेसिफाइड बैंक से अगर आप लोगों की इनकम जा रही है सिर्फ वो उसी पे ही आपको एग्जेम्पशन की छूट मिलेगी। दूसरी चीज आपको टैक्स तो पे करना ही है, एंड टैक्स पे करेंगे तो TDS भी कटेगा। अब TDS का जब क्लेम करेंगे वो डिक्लेरेशन फॉर्म जो आएगा 80C में, कैसे उसमें डिक्लेरेशन जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, गॉड नोज। अभी आगे जो भी हमारे पास रूल्स आएंगे, प्रिस्क्राइब मेथड्स आएंगे, उसके बाद ही सब कुछ पता लगेगा। लेकिन पेंशन्स जहां तक मैं देख रहा था उन्हें 99% पेंशन आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आती है। वही रहेगी हमारी स्पेसिफाइड बैंकिंग कंपनी। अगर आप उसी से इंटरेस्ट सारा कुछ आपकी जो इनकम्स है वो उसी बैंक पर्टिकुलर एक बैंक से आ रही है तभी आपको वो फायदा मिलेगा, अदरवाइज वो नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली अब हम लोग धीरे धीरे करके विल सी ईच एंड एवरी प्रोविजन की व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दैट प्रोविजन। थोड़ा सा डिटेल में मैं एनालिसिस में जाऊंगा, एंड आई एम सो सॉरी हर बार की तरह मैं आप लोगों के साथ मैंने कोई PPT नहीं बनाई है स्पेसिफिकली, बिकॉज आई मतलब जब मैं खुद PPTs देखता हूँ स्क्रीन पे आई यूजुअली स्टार्ट रीडिंग देम। तो बेसिकली वो स्पीकर का एनालिसिस क्वेश्चन चला जाता है मेरे लिए भी। सो आई वांट कि आप मेरे को बस ध्यान से सुनते रहें, एंड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सेशन, दैट आई कैन अश्योर यू। मेरे को 15 मिनट एक्स्ट्रा भी मिल गए हैं तो मैं कंपनी लॉ के मैटर्स को आपके साथ और बेहतर तरीके से भी रख पाऊंगा। हम लोग सेशन को 7 बजे खत्म कर देंगे। मैं कम से कम 10 मिनट्स का टाइम डेफिनेटली सब लोगों के लिए छोड़ूंगा ताकि हम लोग डाउट्स डिस्कस कर सकें या आपकी जो छोटी छोटी क्वेरीज होंगी। आई वुड इंसिस्ट एवरीवन कि आप अपने डाउट्स एंड क्वेरीज को इस डिस्कशन से ही फोकस्ड रखें, बिकॉज
बजट में इतना सब कुछ है, इनफैक्ट मैंने भी अभी तक 100% नहीं पढ़ा, 318 पेजेस का फाइनेंस बिल आया। तो आप इससे रिलेटेड या इनसे जुड़े हुए प्रोविजन से रिलेटेड आप मुझसे कुछ भी पूछिए, आई एम रेडी, आई एम देयर टू हेल्प यू। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों की डिस्कशन मैंने जैसे बताया 3 पिलर्स पे रहेगी। डायरेक्ट टैक्स इम्पैक्ट देखेंगे हम, इनडायरेक्ट टैक्स इम्पैक्ट देखेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे जीएसटी पे भी और कस्टम्स पे भी। इस बार कस्टम्स बहुत हॉट रहा है, तो डेफिनेटली वी कुड नॉट इग्नोर कस्टम्स इन आवर डिस्कशन। तीसरा हम लोग देखेंगे कंपनीज एक्ट पे एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट पे। इन दोनों पे भी बहुत अच्छा एक छोटा छोटा इम्प्लीकेशन आया है, एंड दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ फॉर द प्रोफेशनल्स एंड द पीपल। तो उसे भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। थर्डली हम लोग देखेंगे थोड़े से फाइनेंस प्रोविजंस, क्योंकि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने फेरबदल करी है, कोई सेबी एक्ट में या फिर एससीआरए में। मैं छोटा छोटा सब कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम बिगिनिंग विद द इम्पैक्ट ऑन डायरेक्ट टैक्स प्रोविजंस, और उसमें भी मैं स्टार्ट करूंगा, अभी किसी ने शायद पूछा था जो पीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन था 2.5 लाख रुपए का, सो मैं उसी से ही स्टार्ट करना चाहूंगा। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज taxability of interest on various funds where income is exempt। हम लोग जानते हैं जो अपना पीएफ है उसकी जो इनकम होती है उस इंटरेस्ट के रूप में, दैट इज टैक्स एग्जेम्प्ट। वो कैसे टैक्स एग्जेम्प्ट होती है, कौन से प्रोविजंस है, मैं पहले प्रोविजंस बताऊंगा आपको हर एक अमेंडमेंट के, जो भी एडिशन आया डिलीशन आया, कि पहले क्या था बाद में क्या हो गया, एंड देन आई विल गो ऑन कि भाई अमेंडमेंट क्या आई है, बजट ने क्या कुछ चेंज किया। तो सेक्शन 10 क्लॉज 11, सेक्शन 10 का सब सेक्शन 11 कहता था हमें कि आपको एग्जेम्पशन मिलेगी फ्रॉम एनी पेमेंट फ्रॉम अ प्रोविडेंट फंड टू विच द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 अप्लाइज, और फ्रॉम एनी अदर प्रोविडेंट फंड सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नोटिफाइड इन दिस बिहाफ इन द ऑफिशियल गैजेट। तो आपको सुपर एनुएशन फंड, पेंशन फंड, वॉलंटरी पेंशन फंड, अगर इनसे इनकम आ रही थी बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, या फिर बाय आप किसी भी तरीके से आप जो इनकम कमा रहे थे, ये आपकी बिल्कुल टैक्स एग्जेम्प्ट इनकम थी। ऐसे ही सेक्शन 12 सबसे सेक्शन 10-12 हुआ करता था, वो हमें कहता था कि एग्जेम्पशन आपको मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू द एक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू एंड बिकमिंग पेबल टू एन एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड इन रूल 8 ऑफ पार्ट ए ऑफ 4th शेड्यूल। अब इसके अंदर सारे फैक्टर्स लिखे हुए थे कि किन किन सूरतों में आपको ये पैसा मिल सकता है, ये टैक्स एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, जब मैच्योर हो जाता है, आप लोग जॉब छोड़ देते हैं, एम्प्लॉयमेंट छोड़ देते हैं, वहां से आपको पैसा मिलता है, तो उसकी एग्जेम्पशन क्राइटेरिया को डिफाइन किया गया था। अब इस बजट के अंदर गवर्नमेंट जो थी उन्होंने एक अनोमली नोटिस करी कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल यानी कि HNIs हैं, या फिर वो एम्प्लॉयज हैं जो लोग ज्यादा सैलरी कमाते हैं पर मंथ, वो लोग जो अपनी पीएफ के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, दे कैन कंट्रीब्यूट अप टू 12% ऑफ द बेसिक सैलरी, एंड 12% वो लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी बेसिक सैलरी का इन वॉलेंटरी पीएफ यानी वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड, वीपीएफ अगर कहा जाए तो ईपीएफ में बेसिक सैलरी का 12% डाल सकते हैं, वीपीएफ में सैलरी का 12% डाल सकते हैं, यानी अपनी बेसिक सैलरी का 24% हिस्सा ये लोग पीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उस पर जो इनकम यानी इंटरेस्ट आएगा वो होता था बिल्कुल टैक्स एग्जेम्प्ट। तो गवर्नमेंट ने एक नॉर्मली को पकड़ा, उन्होंने इसको सेंस आउट किया कि भाई जिन लोगों की इनकम ज्यादा है, अगर वो लोग ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे इनटू पीएफ फंड्स, तो उस वजह से बहुत सारा पोर्शन ऑफ इनकम वो चाह रहे हैं हमारी हो जाए एग्जेम्प्ट। हालांकि अगर वो दूसरी किसी चीजों में उन पैसों का निवेश करते तो 30% के स्लैब में वो आ जाते, बिकॉज उनकी पहले ही सैलरी जो है दैट इज क्रॉसिंग दी मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, जो स्लैब रेट बेसिकली प्रिस्क्राइब्ड है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को चेक करने के लिए इस बार एक अमेंडमेंट डाली, एक प्रोवाइजो बनाया सेक्शन 10-11 में और सेक्शन 10-12 में। तो उन्होंने ये जो बेसिकली प्रोविजन बनाई उसमें लिखा कि सम एम्प्लॉइज आर कंट्रीब्यूटिंग ह्यूज अमाउंट टू दीज फंड्स एंड एंटायर इंटरेस्ट accrued received on such contribution is exempt from tax under section 10-11 and 10-12 of the act. This exemption without any threshold benefit only those who can contribute a larger amount to these funds as their share. Accordingly, the finance minister proposed to insert a provision
for providing that the provision of these clauses shall not apply, आपको exemption नहीं मिलेगी to the interest income accrued during the previous year in the account of the person to the extent it relates to the amount or the aggregate of amount of contribution made by the person exceeding 2,50,000 in such previous year on or after 1st April 2021 computed in such manner as may be prescribed. इन लोगों ने इस अमेंडमेंट को डाल दिया। बेसिकली इसकी इंप्लीकेशन क्या निकली, अगर आप 2.5 लाख रुपए से ऊपर का सालाना कंट्रीब्यूशन करते हैं पीएफ में, पीएफ मतलब ईपीएफ भी और वीपीएफ भी दोनों को जोड़ के कॉम्बिनेशन में, सुपर एनुएशन फंड का भी कॉम्बिनेशन, अगर आप 2.5 लाख रुपए से ऊपर डाल रहे हैं, 2.5 लाख रुपए के ऊपर जो भी पैसा आपने डाला उस पे जो इंटरेस्ट अर्न हुआ या अक्रू हुआ वो बन जाएगा आपका टैक्सेबल कंपोनेंट, और आपकी इनकम में वो टैक्स होगा स्लैब बेनिफिट के हिसाब से। अगर आप 30% में तो 30% में, 20% में तो 20% में। तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ा, मुझे मतलब जो सबसे बड़ा एक गवर्नमेंट का एक वो दिखा कि भाई यहाँ से एक्सट्रैक्शन निकाला है गवर्नमेंट ने, और एक तरह से एक अनोमली को प्लग भी किया अपनी तरफ से गवर्नमेंट ने। बट हाँ, ये एक मेजर हिट है। मैंने इस प्रोविजन को थोड़ा सा और एनालाइज किया और पढ़ाई करी तो मुझे पता लगा कि इस कैटेगरी में सिर्फ 3% लोग, यानी कि अगर आप सैलरी इनकम या सैलरी से जुड़े हुए लोगों की बात करें, ये प्रोविजन पीपीएफ के लिए नहीं आया, सिर्फ ईपीएफ और वीपीएफ के लिए आया। तो अगर हम देखें ये उन्हीं लोगों के लिए जो सैलरी से कंसर्न्ड थे। तो अगर वो लोग की जो इनकम थी 1,73,000 1,73,611 रुपीज से ज्यादा मंथली थी, अगर वो कोई भी इंसान 1,73,611 रुपीज से ज्यादा की कमाई मंथली इनकम कमा रहा था, मंथली इनकम का भी मेरा मतलब यहाँ पे है बेसिक सैलरी, अगर उसकी बेसिक सैलरी इतनी थी तो उसकी जो पीएफ कंट्रीब्यूशन जाएगी वो 2.5 लाख रुपए तक सालाना जाएगी। ठीक है, उसको इस प्रोविजन से कोई घाटा नहीं होगा। हाँ, अगर उसकी जो मंथली सैलरी बेसिक सैलरी है वो इस अमाउंट से ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली उसका कंट्रीब्यूशन जो है पीएफ और वीपीएफ में ज्यादा जा रहा होगा, एंड वो उसी वजह से उसका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो अब टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये जो कैटेगरी ऑफ पीपल हैं जो कि इन्हें इतनी सैलरी मिल रही है 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए पर मंथ की, वो लोग ऑलरेडी 30% के टैक्स नेट में थे और वो अपने एक तरह से मनी को चैनलाइज कर रहे थे, वो वीपीएफ के रूट से कर रहे थे, क्योंकि 12% तो दे वर ऑल कंट्रीब्यूटिंग द ईपीएफ, जो रिमेनिंग 12% था जो वो डाल सकते थे वो वीपीएफ के थ्रू एक तरह से प्रोविडेंट फंड्स के अंदर डाल रहे थे। तो वो बेसिकली गवर्नमेंट ने जो है वो प्लग कर दिया है। अब 2.5 लाख रुपए से अगर आप ऊपर डालेंगे जो वो अमाउंट होगा उसके ऊपर आपका जो इंटरेस्ट होगा दैट वुड बी टैक्सेबल। लास्ट टाइम के बजट में गवर्नमेंट ने 7.5 लाख की लिमिट एम्प्लॉयर्स के लिए निकाली थी कि कोई भी अमाउंट या एक्रीशन ऑफ दैट अमाउंट और अक्रूवल ऑफ दैट अमाउंट इंक्रीजिंग अगर 7.5 लाख रुपए आप डालेंगे तो उसकी जो बेसिकली एम्प्लॉयर है उसको भी उन्होंने जो इसकी डिडक्शन थी वो डिसअलाउ कर दी थी, वो एग्जाम्पशन डिसअलाउ कर दी थी, वहीं तक डाल सकते हैं। अब एम्प्लॉयर के लिए हो गया 7.5 लाख, एम्प्लॉय के लिए कोई अपर कैप या अपर लिमिट नहीं थी, अब आ गई है 2.5 लाख। ठीक है। सेकेंडली इस प्रोविजन में अगर आप देखें, आपने सुना होगा सबने कि एक न्यू वेज कोड आ रहा है, न्यू वेज कोड। इस न्यू वेज कोड में बेसिक सैलरी के जो मायने हैं इन्हें विस्तृत यानी बढ़ाया जा रहा है। अब अगर आप देखें, अगर न्यू वेज कोड आता है और बेसिक सैलरी की जो डेफिनेशन है ये वाइड होती है तो आपका 12% जो कंट्रीब्यूशन होगा वो अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। अगर वो अमाउंट आपका ज्यादा हो जाएगा तो आपके पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं 2.5 लाख रुपए जल्दी पहुंच जाएंगे। आप ज्यादा अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे पीएफ में, और अगर आप ज्यादा अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे तो उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट कमाएंगे वो हो जाएगा आपका पूरे पूरे तरीके से टैक्सेबल। तो 1,04,300 रुपए अगर आप मंथली बेसिक सैलरी न्यू वेज कोड आने के बाद कमाएंगे तब आपको ये प्रोविजन कुछ नहीं कहेगी। इससे 1 रुपया भी ज्यादा कमाएंगे तो आप हिट हो जाएंगे इस प्रोविजन से। और अगर आप वॉलंटरी पीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी मर्जी से तो आप हिट होने के चांसेस लाइक आपके 100% है। तो आपको जरूरत पड़ेगी एक फाइनेंशियल एडवाइजर या चार्टर्ड अकाउंटेंट की, जो आपको बता सकेगा कि आप कितना अमाउंट वीपीएफ के थ्रू इसके अंदर डालें ताकि आप उस प्रोविजन का पूरे तरीके से बेनिफिट उठा सके। ये प्रोविजंस हम लोगों के लिए सबके लिए एप्लीकेबल, जो भी सैलरी क्लास के लोग हैं उनके लिए एप्लीकेबल होंगी 1 अप्रैल 2022 से, यानी कि असेसमेंट ईयर जो आएगा, जो फाइनेंशियल ईयर आएगा वो आएगा आपका 21-22। तो नेक्स्ट इस साल की नहीं अगले साल की जब आप आईटीआर भरेंगे उसके अंदर इस चीज का जो इम्प्लीकेशन है वो फ्लो करेगा।
आई एम श्योर आपको इस चीज पे थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी। मैंने न्यू वेज कोड को भी बहुत अच्छे से स्टडी किया था। इसमें उसका टैक्स नेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना कितना अमाउंट होगा, 1,73,611, ये वाले अमाउंट पे मैंने जो आपको कैलकुलेशन बना के दी है, आई हैव नॉट एडेड वीपीएफ। मैं सिर्फ ईपीएफ का 12% ले रहा था। अगर वीपीएफ भी जुड़ जाएगा, ऑब्वियसली ये अमाउंट जो है ये ऑलरेडी उसके नेट में जो भी वो 12% आप कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे वो डायरेक्टली उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट प्रोविजन थी जहां पे पीएफ के इंटरेस्ट को टैक्सेबल कर दिया गया अगर आपकी पीएफ कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए से सालाना ऊपर है। इसको अवॉइड करने का तरीका अगर आप मुझसे पूछें तो वो यही रहेगा कि आप जो वीपीएफ की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उन पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें। आप बहुत अच्छे से इस चीज को स्टडी करें एंड उसके बाद आप अमाउंट जो है पीएफ के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करें। जैसे कि गौरी मैम ने भी बताया कि पीएफ कोई बहुत अच्छा रूट नहीं है इन्वेस्टमेंट का, हालांकि मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद है बिकॉज उससे आने वाला पैसा जो होता है दैट इज ऑल्सो टैक्स एग्जाम। तो आई पर्सनली लाइक इट वेरी मच। एंड जो लाइक जो उसका ब्याज मिलता है दैट इज इवन रीजनेबल। आई मीन एफडी इंटरेस्ट से तकरीबन बैलेंस ऑफ करता है एंड इट इज द मोस्ट सिक्योर इंस्ट्रूमेंट। तो मेरे अकॉर्डिंग तो पीएफ इज वेरी गुड। ठीक है, तो आप बस अपनी टैक्स कैलकुलेशंस को थोड़ा सा दुरुस्त रखिए एंड पीएफ में अच्छे से कंट्रीब्यूट कीजिए। अब हम मूव करेंगे सेकंड जो हमारा एस्पेक्ट, जो हमारी सेकंड प्रोविजन है जिसपे इम्पैक्ट पड़ा है, दैट इज ऑडिट। सीएस के लिए ये बहुत ही बड़ा मैं कहूंगा डिसएडवांटेज ही कहना चाहिए मुझे कि डिसएडवांटेज आया है। लास्ट टाइम के बजट में जो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स था वो 1 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर पे पहले हुआ करता था। पिछले बजट ने अगर आपकी 1 करोड़ से ज्यादा की ग्रॉस रिसीट्स, टर्नओवर या सेल्स थी तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपकी 1 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, तो आप पे जो टैक्स ऑडिट के सिद्धांत हैं वो लगते थे पहले। लेकिन अगर आप नॉन कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं 95%, तो यही टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट या सेल्स की जो लिमिट है इसे हम बढ़ा के आपके लिए 1 करोड़ से कर देंगे 5 करोड़। यानी अगर आपकी टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट्स या सेल्स जो है वो 5 करोड़ तक की हैं और 95% आपका जो व्यापार है, यहाँ पे मैं व्यापार वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं बिकॉज कैश ट्रांजैक्शंस में रिसीट्स और पेमेंट्स दोनों आती हैं सरकार की डेफिनेशन के हिसाब से। तो अगर आपका व्यापार 95% नॉन कैश है, जो कि बहुत लाइक 80-90% केसेस में तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है बिकॉज पेमेंट्स तो हमारी ज्यादा हो ही जाती हैं अगर रिसीट्स हम लोग मिनिमाइज कर भी दें तो उस केसेस में जो आपकी टर्नओवर की या रिसीट्स की लिमिट है ऑडिट की वो 5 करोड़ हो गई थी पिछले फाइनेंस एक्ट 2020 से। इस बार के बजट में सरकार ने इसी 5 करोड़ की लिमिट को बढ़ा के कर दिया है 10 करोड़। यानी अब आपको 10 करोड़ तक ऑडिट कराने की, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स कराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोवाइडेड, एक प्रोवाइडेड वही वाला प्रोवाइडेड लगा हुआ है कि 95% आपका जो व्यापार होना चाहिए दैट शुड बी नॉन कैश। आपको 95% डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने हैं। ये इंसेंटिव सिर्फ सरकार ने इसलिए दिया, अगर आप सब समझे तो जब सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, जब सब कुछ ऑन ट्रैक है तो फिर ऑडिट की जरूरत ही क्या है। जब आप सारी पेमेंट्स जो ले रहे हैं वो भी आप डिजिटली ले रहे हैं, जो दे रहे हैं वो भी आप डिजिटली दे रहे हैं, तो यू आर ऑलरेडी इन द एम्बिट ऑफ द ट्रैकिंग। तो जब आप ट्रैक्ड हैं, 100% ट्रैक्ड हैं, तो आपको सीए के ठप्पे की जरूरत नहीं है, ऐसा सरकार समझती है। मैं ऐसा मानता हूं कि अभी भी इन्होंने जो लिमिट है बढ़ा के 10 करोड़ जरूर कर दी है एंड इससे कहीं ना कहीं सीएस की प्रैक्टिस पे एक इम्पैक्ट भी पड़ेगा। बट मैं फिर से वही कहना चाहूंगा कि 95% नॉन कैश वाला जो पोर्शन है व्यापार का, मतलब 5% रिसीट्स भी है, 5% पेमेंट्स भी आपको कैश में करनी है सिर्फ, तो वो बहुत कम लोग हो पाते हैं जो उस चीज को मैनेज कर पाते हैं। तो इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि जो लोग पहले कवर्ड रहते थे इस प्रोविजन के अंडर, वो तो फाइनेंस एक्ट 2020 से जिसने बचना था वो तो वहीं बच गया था लाइक 90%। जो लोग कुछ एक दो इक्का दुक्का बचे होंगे जिनकी 6, 7, 8, 10 करोड़ तक की टर्नओवर होगी, वो लोग ही बचेंगे, बाकी सब तो अभी भी टैक्स ऑडिट के एम्बिट में है ही है। तो ये वाली जो प्रोविजन इन्होंने एक्सटेंड की थी, एक तरह से दिखने में एक बहुत बड़ा बेनिफिट लगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली इस चीज को देखें कि नॉन कैश 95% करना, मुझे ये ज्यादा बहुत प्रैक्टिकल नहीं लगता। कुछ आईटी कंपनीज वगैरह हो सकती हैं जो एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जिनका कैश पे काम ही बहुत कम है, तो उनके लिए ठीक है, सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस को वैसे भी प्रमोट कर रहे हैं तो दे हैव इंसेंटिवाइज। तो मेरे हिसाब से ये प्रोविजन
बहुत ज्यादा रिग्रेसिव नहीं था, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं ये ऐसा कह दूं कि नहीं बहुत वेलकम मूव था, बिकॉज हम लोगों पे के बिजनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा इससे, बट इन ए नटशेल ठीक है, न्यूट्रल था अगर मैं कहूँ तो, दोनों के एस्पेक्ट्स ही ले लेता हूँ। अब हम लोग मूव करते हैं अपनी थर्ड प्रोविजन की तरफ। जो थर्ड प्रोविजन हमारा है वो है टीडीएस टीसीएस ऑन नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न्स ऑन अ हायर रेट। हम लोगों को सबको पैन और पैन कार्ड की प्रोविजंस के बारे में आइडिया था कि अगर हम अपना पैन जो है वो फर्निश नहीं करते थे सामने वाले को, तो वो हम लोगों का जो टीडीएस या टीसीएस काटता था वो हायर रेट पे काटता था। टीडीएस वो काटता था 20% के रेट पे, एंड जो टीसीएस दे यूज्ड टू डिडक्ट दैट वाज एट द रेट ऑफ 5% इफ वी वर नॉट एबल टू फर्निश द पैन कार्ड्स। अब गवर्नमेंट ने इस प्रोविजन को स्टडी किया और उन्हें ये प्रोविजन बहुत पसंद आया, तो उन्होंने एक चीज सोची कि क्यों ना इन्हीं प्रोविजंस को हम लोग लेके आए नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न के ऊपर, जो कि पूरी कर रहे हैं कुछ कंडीशंस। यानी अगर आप नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न है और अपना आप टीडीएस या अपना पैन कार्ड आप किसी को फर्निश करते हैं फॉर टीडीएस या टीसीएस पर्पस, ठीक है, बट आप रिटर्न नहीं फाइल करते हैं। क्यों नहीं फाइल करते हैं? बिकॉज आपके ऊपर मैंडेटरीली रिक्वायरमेंट ही नहीं है उसे फाइल करने की, या फिर XYZ कितने भी रीजंस हो सकते हैं। तो अगर आपने अपनी रिटर्न नहीं फाइल करी है तो भी आपका जो टीडीएस अब या टीसीएस डिडक्ट होगा वो एक हायर रेट पे होगा। सरकार ने इसे इलैबोरेट करके बताया कि हम लोग जो हायर रेट रख रहे हैं वो कितना रख रहे हैं। इसकी इम्प्लीकेशन क्या निकलेगी हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। ये वाला सेक्शन एंड जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया आपको पीएफ वाला, ये मेरे हिसाब से मेजर क्रैक्स थे इस बार, जो कि एक इंडिविजुअल के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाले हैं अभी आने वाले टाइम के ऊपर। तो समझते हैं, मैंने 2 एग्जाम्पल्स इसके अंदर पूरे फुल फ्लेज लिए हैं आपको समझाने के लिए, तो ये प्रोविजन एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। तो एक पहले के जो प्रोविजंस थे मैं बता देता हूँ। सेक्शन 206AA हुआ करता था हमारे पास हायर टीडीएस के लिए, और 206CC हुआ करता था हायर टीसीएस के लिए। टीडीएस हायर रेट 20% और रेट इन फोर्स व्हिचएवर इज हायर हुआ करता था, और टीसीएस हुआ करता था 5% और द रेट्स इन फोर्स व्हिचएवर इज हायर। तो ये आपके 2 रेट्स हुआ करते थे पहले इन प्रोविजन के अंदर, अगर आप नॉन फाइलिंग, अगर आप अपना पैन फर्निश नहीं करते थे सामने वाले को। So it has been seen that while these provisions have served their purpose in ensuring obtaining and furnishing of PAN by various persons, there is a need to have similar provisions to ensure filing of return of income by those persons who have suffered a reasonable amount of TDS और TCS. Filing of return के ऊपर यहाँ पे फोकस सरकार ने किया है। 2 नए सेक्शंस लेके आए हैं, 206AB और 206CCA। तो a special provision providing for higher rate for TDS for the non-filers of income tax return. Similarly, insertion of a new section of 206CCA in the Act as a special provision for providing for higher rate of TCS for non-filers of income tax return. अब मैं आपको जो प्रोविजन है वो टीडीएस वाली पूरी डिटेल में समझा देता हूँ। टीसीएस वाली सेम है, बस उसका कलेक्शन मैकेनिज्म जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट चलता है, वो हम लोगों को पता ही, वो कलेक्शन है, वो डिडक्शन है, ठीक है। तो मैं आपको टीडीएस के प्रोविजंस हैं जो वो डिटेल में पूरे बता देता हूँ। अब 206AB जो कि टीडीएस है नॉन फाइलर्स के ऊपर, सबसे पहले तो ये इसका बिल्कुल जो ऑपरेशन है दैट वर्क्स लाइक टीडीएस, कि हाँ आपको पैसा दे रहा है सामने वाला बंदा, तो वो पैसा आपको काट के देगा। जैसे आपको बैंक इंटरेस्ट देता है, तो अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो 40 या 50 हजार, बीइंग आप सीनियर सिटीजन है, नॉन सीनियर सिटीजन है, जैसा भी है, अगर वो उस लिमिट से ज्यादा बनता है तो वो 10% का टीडीएस जो है वो डिडक्ट करता है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर अब आप का जो टीडीएस है, जो कि इनके नॉर्म्स है, मैं यहाँ पे अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो ये टीडीएस जो है ये आपका हायर रेट पे कटेगा, कम रेट पे कटेगा, कैसे कटेगा हम लोग अभी देख। तो देख, पहली बात, ये सेक्शन लगेगा कहाँ नहीं, तो दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई वेयर टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192। सैलरी वालों को निकाल दिया, सैलरी वाले आप लोग इस प्रोविजंस के अंडर कवर नहीं होंगे। 192A यानी टीडीएस ऑन प्री मेच्योर विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ, ठीक है। तो इस ये वाले प्रोविजन जो हैं ये इस पर्टिकुलर जहां पे टीडीएस कट रहा था वहां पे भी नहीं लगेंगे। थर्ड 194B, ये हमारा हुआ करता था टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, उस पे भी नहीं लगेगा। उसके बाद 194BB, टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, एंड 194LBC, ये हुआ करता था टैक्स ऑन इनकम रिसीव्ड बाय सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, एंड 194N वो हुआ करता था टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल एक्सीडिंग ₹20 लाख। इन सारे सेक्शंस के ऊपर 206AB और 206CCA के सिद्धांत एप्लीकेबल, जो इनकी प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। नाउ
रेट्स क्या निकाले कि अगर आपकी रिटर्न जो है वो फाइल्ड नहीं होती है तो आपके ऊपर क्या रेट्स आएंगे, तो आपके ऊपर रेट्स आएंगे जो एक्ट के अंदर रेट दिया गया है उसका दोगुना, यानी ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट। जो रेट फोर्स में चल रहे हैं उसका दोगुना, यानी ट्वाइस द रेट और रेट्स इन फोर्स, या फिर द रेट ऑफ 5%, और नीचे लिखा हुआ है विच एवर इज हायर। आप एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से लोअर लिख देंगे, हर जगह हायर हायर हायर, तो हम विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे भी ये प्रोविजन एक तरह से हमने जैसे 206 AA में देखा था, तकरीबन तकरीबन एकदम सेम लैंग्वेज और सेम सारा कुछ के हिसाब से आ रहा है, बट जो डिफरेंस आ रहा है वो ये आ रहा है, वहां पे आया करता था नॉन फर्निशिंग ऑफ पैन, यहाँ पे आ रहा है नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जो क्वेश्चंस हम लोगों के दिमाग में आते हैं वो ये आते हैं कि एक इंसान कैसे डिटरमाइन करेगा कि सामने वाले ने अपनी रिटर्न भरी है कि नहीं, रिटर्न भरी है या नहीं भरी। या तो वो एक डिक्लेरेशन लेगा, डिक्लेरेशन के हिसाब से उसे पता चलेगा कि उन्होंने रिटर्न भरी है कि नहीं, बट इवन देन अगर वो डिक्लेरेशन बेस्ड पे काम करेगा, इवन दैट इज रॉन्ग, बिकॉज अ पर्सन कैन गिव अ फॉल्स डिक्लेरेशन, तो उससे जो प्रोविजन है वो लाइक डिफीट हो जाएगा जो प्रोविजन सरकार ने बनाया। तो कुछ इसका भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म आना आएगा, या डेफिनेटली सरकार ने सोचा होगा, बिकॉज मेमोरेंडम में सरकार ने इसके बारे में कुछ भी ज्यादा एलाबोरेशन नहीं दी। हमारे पास जो प्रोविजन है वो इतना ही है अभी जो आया है। मैं इसको एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बहुत ही क्लियर कट तरीके से समझाता हूँ। अब मान लीजिए एक इंडिविजुअल है हु इज नॉट फाइलिंग इज ITR, बट उसकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो बैंक FD से आती है, ठीक है। अब वो क्यों अपनी ITR नहीं फाइल कर रहा है, क्योंकि उसकी मान लीजिए 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए की उसका स्लैब लिमिट है, डिडक्शंस लगाने के बाद या डिडक्शन से पहले भी उसका जो स्लैब है वो 2.5 लाख रुपए से कम की उसकी इनकम बनती है, तो उस पे ITR फाइलिंग 139(1) में अप्लाई नहीं करती है, इसलिए वो अपनी रिटर्न नहीं फाइल कर रहा। अब banks are normally required to deduct TDS on interest income paid on FDs unless form 15G and 15H are furnished. फॉर्म 15G 15H हम सबको पता है, वो बेसिकली इसके लिए होते हैं कि हमारी जो इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से कम बनेगी, वो डिक्लेरेशन है बेसिकली कि आप हमारा TDS ना डिडक्ट करें, ठीक है। तो जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए 15H रहता है, और जो नॉन सीनियर सिटीजन है उनके लिए 15G रहता है। तो ये जो एक मिस्टर ए जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन्होंने ये कोई डिक्लेरेशन जो है बैंक को नहीं फर्निश करी है। ध्यान रखिएगा इन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं फाइल करी। तो अब इस प्रोविजन के हिसाब से इस केस में द बैंक विल बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द TDS एट द हायर ऑफ द फॉलोइंग रेट्स। अब हायर ऑफ द फॉलोइंग रेट्स क्या रहेंगे, हमने अभी पढ़ा 3। पहला, ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट। हमें पता है 10% का रेट है, तो ट्वाइस द रेट हो गया 20%। सेकेंड कंडीशन थी ट्वाइस द रेट और रेट्स इन फोर्स, दैट इज 15%। अब ये 15% कैसे है, हमें पता है जो आत्मनिर्भर पैकेज आया था उसमें 25% का TDS पे रिबेट दिया था, आप सबको याद आ गया होगा। तो 10% से वो TDS का रेट घट के हो गया था 7.5%। अब 7.5% का डबल 15%, ये हो गया हमारा रेट इन फोर्स। तो रेट इन फोर्स का 2 टाइम्स, तो ये एक सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड हमारा 5% का रेट है, इसमें से जो भी हायर होगा वो TDS उस पर्टिकुलर मिस्टर ए का डिडक्ट होगा, वो बनता है 20%। तो 20% पे बैंक इस नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, जो ये मतलब नहीं अपनी रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, इस पे TDS डिडक्ट करेगा। हाउ हार्श इज दिस प्रोविजन। अब मान लीजिए इसी प्रोविजन, इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूं। इसमें मैं बोलता हूं कि यही मिस्टर ए हैं, एक 80 साल के बुजुर्ग, ठीक है, जो कि हैं वेरी सीनियर सिटीजन, और वेरी सीनियर सिटीजन होने के साथ साथ इनका जो स्लैब रेट है वो है 5 लाख। अब मान लीजिए ओल्ड टैक्स रिजीम में है, और इनकम जो ये इंटरेस्ट इनकम ब्याज से इन्हें आती है दैट इज 75,000 रुपीज, और कोई इनकम नहीं है, पेंशन की छोटी मोटी इनकम है मान लीजिए 2-3 लाख रुपए की साल की, और साथ में 75,000 रुपए का ये FD का इंटरेस्ट ड्रॉ कर रहे हैं। ये भी है नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। क्यों है, क्योंकि टैक्स स्लैब से नीचे है भाई, इनकम जो सीधा सीधा उससे नीचे है, तो रिक्वायरमेंट ही नहीं आती है 139(1) में फाइल करने की, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये इंसान भूल जाता है 15H फॉर्म अपना फाइल करना बैंक के साथ। अब आप प्रोविजन को समझिए, 20%, 15%, 5%, विच एवर इज हायर। इनकी 75,000 रुपीज की बेचारे 3-4 लाख रुपीज तक भी नहीं पहुंच रहे होंगे, अगर 5 लाख तक भी पहुंच जाए तो इनका जो 75,000 की इनकम है उस पर 20% का TDS काट लेंगे। TDS कटने से होगा क्या, इनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, उसका अगर ये क्लेम करेंगे, अगर क्लेम नहीं करेंगे तो वो 20% जो है सरकार के साथ रह जाएगा।
तो ये बेसिकली जो कंडीशन सरकार ने लगाई है एक तरीके से, तो ये बड़े हार्श प्रोविजंस लगे मुझे इस कंडीशन में। लेकिन अगर आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब इस प्रोविजन को पढ़ा तो हमने यही इम्प्लीकेशन निकाला। फिर हमने देखा दैट गवर्नमेंट जो मेमोरेंडम आया साथ में बजट के, तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि भाई हम इस प्रोविजन को और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, एंड ये जो प्रोविजन होगी ये एप्लीकेबल होगी एक स्पेसिफाइड पर्सन पे। अब स्पेसिफाइड पर्सन भी उन्होंने डिफाइन किया। तो एज पर द एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम ऑफ द बजट, द स्पेसिफाइड पर्सन इज अ पर्सन who has not filed the return of income for both of the two assessment years relevant to the previous year which the case may be। मतलब 2 साल, पिछले 2 साल जिस साल में इनकम ये वाली जो टीडीएस कटना है वो है, उससे 2 पिछले असेसमेंट ईयर्स जो भी उनकी इनकम थी उन्होंने अपनी आईटीआर जो है वो नहीं फाइल करी है। दूसरी कंडीशन उन्होंने ये दी कि उस आईटीआर को फाइल करने की लिमिट जो है वो भी खत्म हो जानी चाहिए। लाइक फर्दर द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139 ऑफ द एक्ट हैज एक्सपायर्ड फॉर बोथ दीज असेसमेंट ईयर्स। तो उन दोनों को फाइल करने की जो टाइम लिमिट है वो भी एक्सपायर हो जानी चाहिए। ठीक है। थर्ड कंडीशन में लिखा है देयर इज अनदर कंडीशन दैट एग्रीगेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स aggregate TDS भी TCS भी in his case is rupees 50,000 or more in each of these two previous financial years, in each of these two previous years। तो इन पिछले दोनों सालों में जिसमें उन्होंने अपनी आईटीआर नहीं फाइल करी है उनका TDS प्लस TCS 50,000 या 50,000 रुपए से ज्यादा का डिडक्टेड होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो वो इस कंडीशन में फिट हो जाएंगे, उनके ऊपर ये प्रोविजंस लग जाएंगी, एंड लग जाएंगी तो 20, 15, 5, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ बैंकिंग का, यहाँ पे 20% इन लोगों पे अप्लाई हो जाएगा अगर ये अपनी आईटीआर नहीं फाइल करेंगे। बेसिकली सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग तो आईटीआर फाइल करें ही, बट वो लोग जरूर करें जिनका टीडीएस जो है वो 50,000 से ज्यादा का कट रहा है और वो फाइल नहीं कर रहे हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो ये एक कंडीशन उन्होंने जब रख दी तो ऑब्वियसली आपको पता होगा बहुत सारे लोग बाहर भी निकल जाएंगे, बहुत सारे लोग एम्बिट में भी आ जाएंगे। लेकिन जो वो 80 ईयर्स के बुजुर्ग का मैंने एग्जांपल लिया, मतलब वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा, मतलब जब मैंने ये प्रोविजन पढ़ा तो मुझे बहुत बुरा लगा कि यार ऐसे तो बहुत सारे लोग जो हैं इसके एम्बिट में आ जाएंगे। बट अब आप देखिए हमने पढ़ तो लिया इस सेक्शन को, लेकिन अगर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन की बात करें या सोचें तो एक डिडक्टी या फिर जो डिडक्टर जो काटेगा, डिडक्टर जैसे बैंक होगा हमारे एग्जांपल के केस में, उसे कैसे पता चलेगा कि भाई उन्होंने 2 साल की पिछली आईटीआर भरी है कि नहीं भरी है, उनका जो टीडीएस डिडक्टेड था वो 50,000 रुपए से ज्यादा था या नहीं था, उन्हें ये सब चीजें कैसे पता चलेगी। तो इसकी क्लैरिटी कोई हमारे मेमोरेंडम जो है उसके अंदर मुझे तो नहीं दिखी है, और बिल्कुल भी नहीं है, आई कैन अश्योर यू फॉर दैट। तो पता कैसे चलेगा, ट्रैकिंग कैसे होगी, क्या होगा, कैसे होगा, देखते हैं। सरकार प्रोविजंस को ला रही है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021, तो लेट ला रही है थोड़ा सा, शायद कुछ मैकेनिज्म डेवलप करे भाई जिससे ये सारी ट्रैकिंग्स जो है ये पता चल पाए। टीसीएस के लिए भी एकदम सेम प्रोविजन है, उसमें लिखा हुआ है 5% का ही उसके अंदर भी रेट डिफाइंड है, लाइक हायर रेट, एंड और फॉर वट एवर द प्रोविजन उसका ट्वाइस, तो उसके अंदर भी एक तरह से बिल्कुल सेम प्रोविजन ही लिखे हैं। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है रिलीफ फॉर डिविडेंड। हम लोग अब थोड़ा सा तेज जाएंगे, ये 3 प्रोविजन में एनालिसिस थोड़ा सा ज्यादा था इसलिए मैंने इनको बहुत स्टेबली एंड विद एग्जांपल्स कवर किया है। एक मैं आपको और प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा अपने आने वाले एक पॉइंट के अंदर, डायरेक्ट टैक्स के अंदर, बिकॉज वो मुझे ऐसा लगता है कि सबको एक बार देख के ज्यादा बेटर समझ आ जाएगा। तो अब हम लोग मूव करते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, फोर्थ डायरेक्ट टैक्स प्रोविजन की तरफ, जो है रिलीफ फॉर डिविडेंड। अगर हम देखें तो बजट 2020 ने अबॉलिश कर दिया था डीडीटी यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, और अब जितने भी डिविडेंड के रिसीट्स थे वो टैक्सेबल होते थे रिसीवर के हाथ में, यानी शेयर होल्डर या यूनिट होल्डर के हाथ में। इसकी वजह से टीडीएस ऑन डिविडेंड पेमेंट्स भी सरकार को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, बिकॉज अब आप उसका ट्रैकिंग मैकेनिज्म बनाने के लिए बेसिकली। अब इशू क्या आया है कि जो आपकी डिविडेंड साल की डिविडेंड पेमेंट्स आती हैं वो कंपनी के हिसाब से, कंपनी अपने हिसाब से देता है, इंटरिम मीटिंग में या इंटरिम डिविडेंड देता है या फिर फाइनल डिविडेंड देता है अपनी एजीएम के अंदर। तो एक शेयर होल्डर कैसे असेस कर पाएगा जो कि एडवांस टैक्स भरता है कि भाई उसे साल में क्या डिविडेंड मिलेगा, बिकॉज वो उसके
he cannot he does not have the access of the information कि उसे कितना डिविडेंड मिलेगा। ये तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे, उसके बाद जाके उसे पता चलेगा एजीएम के अंदर या इंटरिम जो डिविडेंड रहता है बोर्ड की डिस्क्रिप्शन से आता है कि भाई उसके पास कितना डिविडेंड रिसीट होने वाला है। तो उसके ऊपर जो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी थी, बाद में अगर वो पैसा वो अपना दिखाता है तो उसके ऊपर अगर वो उतना ही एडवांस टैक्स कम पे करता है तो उसे एडवांस टैक्स में इंटरेस्ट लग जाता है अंडर सेक्शन 234C 1% पर मंथ का। तो सरकार को भी ये चीज समझ आई और उन्होंने डिविडेंड पे से जो ये वाला डिविडेंड था इसमें एक कंडीशन ऐड करी कि आपकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी सिर्फ उसी डिविडेंड पे असेस की जाएगी जो कि डिक्लेयर्ड डिविडेंड या फाइनल या पेड पेमेंट ऑफ डिविडेंड या डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड होगी। तो आप क्योंकि इसे असेस कर ही नहीं सकते पहले से कि आपको क्या कितनी इनकम आएगी कितनी नहीं आएगी, बिकॉज कंपनी के प्रोसेसेस जो भी कंपनीज एक्ट के मैटर है उससे पता चलेगा कि कितना आएगा कितना नहीं आएगा। तो इसलिए इसके ऊपर जो एडवांस टैक्स लायबिलिटी है वो तभी अराइज होगी जब आपको डिविडेंड या तो कंपनी डिक्लेयर कर देगी, बिकॉज डिक्लेरेशन पे पेमेंट मैंडेटरी हो जाता है एज पर कंपनीज एक्ट। तो डिक्लेरेशन करेगी या पेमेंट करेगी, ठीक है। तो यहाँ से जो एडवांस टैक्स के प्रोविजंस थे बेसिकली उन्हें रिलैक्स किया गया तो सबका हित देखते हुए। और ये भी जो अमेंडमेंट्स हैं ये अप्लाई करेंगी 1 अप्रैल 21 से, फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 से लेके, मतलब जो अभी आप आईटीआर फाइल करेंगे उसमें आप इस चीज का बेनिफिट उठा पाएंगे। आपको जो डिविडेंड वाली आपकी इनकम होगी उसके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी जो है वो अराइज नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट जो डिविडेंड के अंदर ये आया वो था रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट यानी रीट या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जिसे हम इन्विट कहते हैं। इनको अगर टीडीएस अगर जो इनको डिविडेंड रिसीव होगा तो उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। ये सेकंड प्रस्ताव था टीडीएस से रिलेटेड। थर्ड था 196G जो कि था टीडीएस ऑन इनकम ऑफ FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो उनको अर्लियर जो था हम 20% 196D कहता था कि उन्हें जो हमें टीडीएस का रेट काटना है दैट इज 20%। अब ये जो पर्टिकुलर फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, हम लोगों को पता है कि इंडिया एंड सारी कंट्रीज के बीच में ट्रीटीज होती हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटीज जिसे कहते हैं, या फिर और भी कोई ट्रीटी हो सकती है जिसके अंदर टैक्स रेट जो है वो इंडिया का या फॉरेन का विच एवर इज लेस या विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू दैट पर्टिकुलर पर्सन वो अप्लाई करे। तो अब यहाँ पे जो टीडीएस का रेट था, जो टीडीएस कट रहा था वो फ्लैट 20% पे कट रहा था। हालांकि हो सकता था उस कंट्री में ट्रीटी बेनिफिट जो हो वो 10% का हो, तो 10% का एक तरह से आप ट्रीटी बेनिफिट नहीं दे रहे थे उस बंदे को इस प्रोविजन के अंदर। तो सेक्शन 90 को और 90A को दोनों को देखा गया और ये कहा गया कि अब 196D की जो लैंग्वेज है उसमें लिखा जाएगा कि टीडीएस का रेट वुड बी 20% और रेट्स ऑफ इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन सच अग्रीमेंट। और ये अग्रीमेंट होगा आपका या तो डीटीए होगा या कोई ट्रीटी एग्रीमेंट होगा, तो विच एवर इज लोअर। ये पहली बार एनआरआईज के लिए ये लोग ऐसी चीजें आती हैं अच्छी अच्छी ल्यूक्रिएटिव सी जिसमें हमें विच एवर इज लोअर देखने को मिलता है, वरना तो नॉर्मल सिटीजन्स के लिए तो ये हमेशा विच एवर इज हायर ही रहता है। तो ये विच एवर इज लोअर हो गया कंसिडरिंग द ट्रीटी बेनिफिट। तो ये बेनिफिट मिला फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को। नेक्स्ट जो डिविडेंड के अंदर रिलीफ आया दैट इज विद रिगार्ड टू द मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्सेस। तो उन्होंने प्रपोज किया है दैट दे विल एग्जेम्प्ट डिविडेंड पेमेंट फ्रॉम द लेवी ऑफ मैट for foreign company if the applicable tax rate is less than the rate of MAT। अगर मैट से जो आपका फॉरेन कंपनी का रेट होगा अगर वो कम है तो जो डिविडेंड पेमेंट आएगी वो आपकी एग्जाम्प्ट रहेगी बिल्कुल। तो ये प्रोविजन भी उन्होंने रिलीफ ऑफ डिविडेंड में ऐड किया। अगला लास्ट रिलीफ जो कि उन्होंने डिविडेंड को मद्देनजर रख के दिया दैट वाज विद रिगार्ड टू सेक्शन 194 एंड दैट प्रोवाइड्स फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स टू अ रेजिडेंट। तो उसमें एक इन्होंने सेकंड प्रोवाइजो को इंसर्ट कर दिया है जो कि कहता है कि दिस पर्टिकुलर प्रोवाइजो शैल नॉट अप्लाई टू सच इनकम क्रेडिटेड और पेड टू सर्टेन इंश्योरेंस कंपनीज और इंश्योरर्स। ये 194 के अंदर प्रोविजन लिखा हुआ था कि जिसके अंदर टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड कई कई हिस्सों में या कई कई जगहों पे नहीं लगता। तो इन्होंने अमेंडमेंट से उसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा वाइडर कर दिया है और प्रोवाइड करवाया है कि ये पर्टिकुलर प्रोविजन जो है ये नहीं अप्लाई करेंगे इन केस ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट जो कि डिविडेंड इनकम्स को रिसीव कर रहा है बाय स्पेशल पर्पस व्हीकल और पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू एनी अदर पर्सन एज में बी नोटिफाइड। अब ये नोटिफाइड क्या होंगे इनकी लिस्ट आ जाएगी अलग से। एंड ये जो अमेंडमेंट है ये सब रेट्रोस्पेक्टिवली आएंगे, मतलब सारे तो नहीं बट इनमें से बहुत सारे जो आएंगे वो रेट्रोस्पेक्टिवली आएंगे यानी 1 अप्रैल 2020 से आएंगे। बिकॉज डिविडेंड में रिलीफ हमें तभी से चाहिए जब से डिविडेंड को टैक्सेबल कर दिया गया शेयर होल्डर्स के हाथ में, एंड जो कि फाइनेंस एक्ट 2020 ने कर दिया था। तो ये प्रोविजंस को इसलिए रेट्रोस्पेक्टिवली रखा गया।
नेक्स्ट बेनिफिट पे हम मूव करेंगे, दैट इज टैक्स बेनिफिट फॉर स्टार्टअप्स। अब स्टार्टअप्स के लिए हम लोगों के पास एक सेक्शन था 80 IAC, हाँ 80 IAC एक सेक्शन था, वो कहता था कि अगर कोई स्टार्टअप है, नया स्टार्टअप है, उसके हम 10 साल के प्रॉफिट्स में से 100% एग्जाम्प्ट करेंगे कोई भी 3 साल के प्रॉफिट्स जो वो स्टार्टअप अपनी मर्जी से चूज करे, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल टू हिम। तो उन 3 साल के प्रॉफिट्स पे हम लोग इनकम टैक्स को जो है वो बिल्कुल रिलीफ दे देंगे। कंडीशन ये थी कि स्टार्टअप जो है उनकी जो टर्नओवर होगी वो 100 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन ये थी कि स्टार्टअप इनकॉर्पोरेट होना चाहिए 1 अप्रैल 16 से लेके 31 मार्च 2020 तक। हाँ जी, मतलब 1 अप्रैल 21 से पहले पहले तक उसकी इनकॉर्पोरेशन जो है वो हो जानी चाहिए, तभी उसको इस पर्टिकुलर स्टार्टअप इंसेंटिव मिलेगा। अब गवर्नमेंट ने ये चीज नोट करी कि भाई इकोनॉमी में बूस्टर तो हम बात कर ही रहे हैं, उसकी जरूरत है, तो दे हैव एक्सटेंडेड दिस प्रोविजन। अब उन्होंने एक्सटेंशन में क्या किया है कि ये जो 31 मार्च 2020 वाली लिमिट मैंने आपको बताई थी कि यहां तक इनकॉर्पोरेशन हो जाना चाहिए, वो इनकॉर्पोरेशन अगर अब 31 मार्च 2020 तक, मैंने 2020 बोला, आई एम सो सॉरी, 2021, 31 मार्च 2021 तक जितने स्टार्टअप्स इनकॉर्पोरेट हो गए थे उन्हें स्टार्टअप के ये टैक्स बेनिफिट मिलते थे। अब इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है 31 मार्च 2022 तक, यानी 1 साल बढ़ा दिया। अगर आप यहां तक अपना स्टार्टअप जो है वो इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो आप ये 3 साल के 100% टैक्स बेनिफिट को एंजॉय कर सकते हैं। सेकंड, इन्होंने जो एग्जेम्पशन या फिर इंसेंटिवाइज किया स्टार्टअप्स को, दैट वाज विद रिगार्ड टू सेक्शन 54 GB। अब सेक्शन 64 GB में जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, दैट प्रोवाइड फॉर एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन विच अराइजेस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, अ हाउस और अ प्लॉट ऑफ लैंड ओन्ड बाय एन एलिजिबल असेसी। तो अगर वो इसे ट्रांसफर करता है, उस पे जो कैपिटल गेन आता है बेसिकली, उस वो कैपिटल गेन उस हद तक एग्जेम्प्ट है अगर वो अपने इस कैपिटल गेन को इन्वेस्ट करता है शेयर्स ऑफ स्टार्टअप में। So the assessee is required to utilize the net consideration for subscription in the equity shares of an eligible startup before the due date of furnishing of return of income under 139(1). अपनी ITR भरने से पहले अगर वो इस अमाउंट को डाल देता है इक्विटी शेयर्स में, तो इक्विटी शेयर्स ऑफ स्टार्टअप में, तो 54 GB के अंदर उसे डिडक्शन मिलती थी। द एलिजिबल स्टार्टअप इज रिक्वायर्ड टू यूटिलाइज दिस अमाउंट फॉर परचेज ऑफ न्यू एसेट विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय द एसएससी। उस स्टार्टअप पे ये कंडीशन थी कि वो इस पैसे को 1 साल के अंदर अंदर न्यू परचेज ऑफ न्यू एसेट्स के अंदर खर्च करेगा। तो ये जो बेनिफिट था ये मतलब था जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होंगी अप टू 31 मार्च 2021, ठीक है, तो आप ये 54 GB का बेनिफिट उठा सकते थे। एक तरह से आप इन्वेस्टमेंट बूस्टर्स था स्टार्टअप के लिए कि आप स्टार्टअप में पैसा डालिए, हम आपको इनकम टैक्स की छूट देंगे अपने कैपिटल गेन अमाउंट पे। तो इसकी डेडलाइन भी खत्म हो रही थी 31 मार्च 21 को, तो इन्होंने इसे 1 साल और बढ़ा दिया, क्योंकि सारा ही हम इकोनॉमी बूस्टर पे पूरा का पूरा बजट जो है डिपेंडेंट है, तो उसे बढ़ा के 31 मार्च 2022 कर दिया। अगला पॉइंट मेरे पास था रिलैक्सेशन टू एनआरआई फॉर इनकम ऑफ ओवरसीज रिटायरमेंट फंड। ये गौरी मैम ने कवर ऑलरेडी कर लिया है, उसके अंदर उन्होंने बताया है आपको कि अगर वहां से आपको जो पैसा है वो रिसीव होगा तो उसके ऊपर आपको स्पेसिफिक रिलीफ दिया जाएगा, जो कि सेक्शन 89A इन्होंने नया इंसर्ट किया। ये डिफरेंसेस बेसिकली हुआ करते थे कि आप देखिए फॉरेन कंट्रीज में कैलेंडर ईयर चलता है और इंडिया के अंदर फाइनेंशियल ईयर चलता है। तो अब वहां पे मान लीजिए आपने विड्रॉ किया जो अपना अमाउंट है, वो मान लीजिए आपने करा कैलेंडर ईयर में, यहाँ का वो फाइनेंशियल ईयर अगला साल हो गया, तो उसके ऊपर एक मिसमैच आता था। दूसरा मिसमैच ये आता था वहां पे ये वाला पर्टिकुलर विड्रॉल जो है वो टैक्सेबल होता था आपका रिसीट बेस पे, इंडिया इसे टैक्स करता था अक्रूवल बेस पे। तो इस मिसमैच को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने ये रिलैक्सेशन प्रोविजंस वो लोग लेके आए थे फॉर ओवरसीज रिटायरमेंट फंड फॉर एनआरआईज, ये एनआरआई स्पेसिफिक डिडक्शन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंक्रीज इन सेफ हार्बर लिमिट ऑफ 10% फॉर होम बायर्स एंड रियल एस्टेट डेवलपर्स सेलिंग सच रेजिडेंशियल यूनिट्स। अब इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। अब इसमें आप देखिए, अगर आप किसी से भी जो है प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और वो प्रॉपर्टी आप जो एक्चुअली परचेज करते हैं वो उस एरिया के सर्कल रेट यानी स्टैंप ड्यूटी जो हम भरते हैं जिस वैल्यू के ऊपर, उससे वो कम है, तो जो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है उसकी जो असेसमेंट होती थी उसके लिए जो सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी वो एक्चुअल कंसिडरेशन नहीं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मानी जाएगी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है विच एवर इज हायर। और सेकेंडली एक इम्प्लीकेशन और इसमें आता था कि जो डिफरेंशियल आएगा वो आपका मान लिया जाएगा इनकम अंडर अदर सोर्सेज 56 to 10 में। तो अगर वो 50,000 रुपए से ज्यादा की है तो
तो ये दो इम्प्लीकेशंस फ्लो करते थे सेलर पे और बायर पे। प्रीवियस बजट के अंदर गवर्नमेंट ने इस चीज को टैकल करके इसमें एक रिलीफ ऐड किया कि अगर आपका जो स्टैम्प वैल्यूएशन है दैट इज 110%, मतलब 110% तक अगर आपकी कंसिडरेशन जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है दैट इज बेसिकली ज्यादा, वो आपकी ज्यादा है, लेकिन जो आपकी परचेज कंसिडरेशन है वो 110% तक है ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन, तो हम आपकी जो वैल्यू है उसे ही कंसिडर कर लेंगे, जो आपकी एक्चुअल ट्रेडेबल जो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है हम उसे ही कंसिडर कर लेंगे एज योर फाइनल कंसिडरेशन। तो उस केस में आपके ऊपर 43 CA की ये एडिशनल लिमिट या फिर 56(2)(10) की कोई एडिशनल लिमिट नहीं आएगी। तो ये दोनों प्रोविजंस थे जो हम लोगों के पास पहले थे। अब हमने देखा कि इकोनॉमी के अंदर एक स्लो डाउन आया, रियल एस्टेट तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है, तो जो इन्वेंट्री बहुत सारी बिल्डर्स के पास बच गई है अनसोल्ड फ्लैट्स की, अब उसे वो लोग बेच रहे हैं, तो वो द बायर इज नॉट पेइंग देम द फुल अमाउंट, वो भाई कम पे ट्रांजैक्शन हो रही है बिकॉज स्ट्रेस्ड मार्केट है, उन्हें भी बेचना है, पैसा रियलाइज करना है, तो थोड़ा सा कम मुनाफे पे बेच रहे हैं बेसिकली। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो ज्यादा हो रही है एंड जो ट्रांजैक्शन हो रही है, एक्चुअल ट्रांजैक्शन हो रही है, वो कम पे हो रही है। तो ये एक रियलिस्टिक सिनेरियो है, मेरे एरिया के अंदर भी ऐसी ट्रांजैक्शंस मेरे सामने आई हैं। तो सरकार ने इस चीज को रैशनलाइज या फिर उस इसमें एक रिलीफ देने के लिए, ताकि जो एक्चुअल ट्रांजैक्शंस है उन पे बेफिजूल का टैक्सेशन का इम्प्लीकेशन ना आए, एक अमेंडमेंट निकाली है 43 CA में और दूसरी 56(2)(10) में। उन्होंने कहा है कि अगर आपका ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट टेक प्लेस करता है 12 नवंबर 2020 से लेके 30 जून 2021 के बीच में, ठीक है, तो आप इस बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं कि आपकी जो हम जो सेफ हार्बर लिमिट 10% थी पिछले बजट में, उसे हम 20% कर देंगे। मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके एक पूरा एग्जाम्पल मैंने प्रिपेयर करा है, 2 मिनट लगेंगे, हम लोग वो भी देख लेंगे। दूसरी कंडीशन उन्होंने ये रखी, द ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट ऑफ द रेजिडेंशियल यूनिट टू एनी पर्सन। तो ये इनिशियल अलॉटमेंट होनी चाहिए, मतलब नया घर पहली बार बिकना चाहिए, ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ओनर्स के बीच में, ये भी एक कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन रखी गई, जो कंसिडरेशन रिसीव होगी वो आपकी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी, मतलब अप टू 2 करोड़ तक का अगर आप घर खरीदते हैं इनिशियल 12 नवंबर से लेकर 30 जून 21 के बीच में, 12 नवंबर 2020 से 30 जून 2021 में, तो आपको जो सेव हार्बर मिलेगा वो 10% की जगह मिलेगा 20%। मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर रहा हूं, उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे इस चीज की जो इम्प्लीकेशन है वो फ्लो कर रही है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, स्क्रीन सबको विजिबल है प्रोबेबली। तो ये हमने पोस्ट बजट 2021 का लिया है, ठीक है। सेफ हार्बर जो है वो बढ़ा के कर दिया गया है 20% फ्रॉम एग्जिस्टिंग 10% विद 3 कंडीशंस। 3 कंडीशंस क्या है वैसे ही देख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट टेक प्लेस बिटवीन ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 12th नवंबर टू 30th जून। ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट ऑफ द रेजिडेंशियल यूनिट। और थर्ड है दैट एज अ रिजल्ट ऑफ सच ट्रांसफर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज की कंसिडरेशन की लिमिट होगी। एग्जाम्पल को देखते हैं। Messrs. RZB Builders and Estate Developers Private Limited has developed a residential complex named Eleganza। हम लोग अभी सिर्फ लेफ्ट साइड व्हाइट पोर्शन को देखेंगे, ये सोल्यूशन है, ये मैं आपको अभी जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ। मिस्टर ए इंटेंड्स टू बाय अ 4 BHK रेजिडेंशियल फ्लैट इन दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में ये 4 BHK फ्लैट लेना चाह रहे हैं। द फ्लैट हैज बीन अलॉटेड टू मिस्टर ए ऑन 1 जनवरी 2021। इनिशियल अलॉटमेंट है, क्लियर हो गया, 1 जनवरी को कर रहे हैं। हमारी जो ड्यूरेशन आई है 12 नवंबर से लेके 30 जून के उसके बीच में कर रहे हैं, और उसी दिन उसकी रजिस्ट्री भी हो गई, ठीक है। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ दिस फ्लैट एज असेस्ड बाय द अथॉरिटी इज 1.5 करोड़। जब ये इसको रजिस्टर, इसका जो सर्कल रेट है बेसिकली प्रॉपर्टी का, ये है 1.5 करोड़। The flat was, however, sold for rupees 1.25 crore to Mr. A by the builder due to recession in the real estate market। तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन में उन्होंने 1.25 करोड़ का इसे बेच दिया। कोई ब्लैक मनी इन्वॉल्व नहीं है, 25 लाख रुपया कैश दे दिया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। 25 लाख रुपया एक्चुअली कम दिया गया इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में ड्यू टू सीइंग द रिसेशन इन द मार्केट। व्हाट विल बी द टैक्स इंप्लीकेशन इन द हैंड्स ऑफ Messrs. RZB Builders and Mr. A। ठीक है, अब हम देखते हैं। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हमने देख ली 1.5 करोड़ रुपए की है। सेफ हार्बर लिमिट 20% का कर दिया है 10% से। मिनिमम सेल कंसिडरेशन कितनी हो ताकि ये जस्टिफाई कर जाए इस सेक्शन में कि इन्हें
जो इनके लिए जो सेल कंसिडरेशन कंसिडर हो वो 1.5 करोड़ ना हो के इनकी एक्चुअल जितनी सेल कंसिडरेशन है वही कंसिडर हो। तो 1.5 करोड़ था, उसे हमने 120% से डिवाइड करा, तो हमारे पास 1 करोड़ 25 लाख आया। यानी 1 करोड़ 25 लाख तक का अगर इनकी सेल कंसिडरेशन रहेगी तो 43 CA और 56(2)(10) की जो प्रोविजंस है वो इन पे एप्लीकेबल नहीं रहेंगी। Thus, Messrs. RZB Builders shall avoid the tax implication under Section 43 CA, as the sale consideration shall be taken as rupees 1.25 crore as against the stamp duty valuation of 1.5 crore. Mr. A को ये फायदा होगा, he would not be subjected to any tax implication under Section 56(2)(10). ये बच गए हैं, ये छूट गए हैं, तो ये ऑटोमेटिकली छूट गए। 3 कंडीशंस मैंने आपको बताई दी हैं, इसमें कवर हो रहा है, इसमें भी कवर हो रहा है, इनिशियल अलॉटमेंट था, और इसके अंदर भी वो बिल्कुल कवर हो रहा है। ठीक है जी, अब मैं स्क्रीन शेयरिंग को करता हूं पॉज। हाँ जी, वी आर बैक टू द व्यू। तो ये हम लोगों का एक पर्टिकुलर प्रोविजन आया था, जो कि आया था 56(2)(10) में और 43 CA में। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे टैक्स TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रखे हैं प्रोविजंस। पहले आता है TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स 1 अक्टूबर 2020 से। हमने CA क्लब इंडिया के साथ फुल कवरेज करा था उसका, एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था आप लोग सबने, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब सरकार लेके आई है टैक्स डिडक्शन ऑन परचेज ऑफ गुड्स। भाई पहले सेल पे लगा रहे थे, अब परचेज पे लगा रहे हो, वो TCS था, ये TDS है। भाई चल क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आता। तो ये मैं आपको एक्चुअल ही पढ़ के सुनाऊंगा, बिकॉज मेमोरेंडम के अंदर इसमें पूरी क्लैरिटी सरकार ने हमें दे दी। TDS shall be deducted by a person responsible for paying any sum to any resident for purchase of goods. Goods की बात हो रही है। The rate of TDS is kept very low at 0.1%, 0.10%. To ensure that compliance burden is only on those who can comply with it, it is proposed that tax is only required to be deducted by those persons, yani wo buyers, whose total sale, gross receipts or turnover from the business carried on by him exceeds 10 crore rupees during the financial year immediately preceding the financial year in which the purchase of goods is carried out. तो उन्हीं बायर्स के लिए बेसिकली आया है जिन लोगों की सेल जो है वो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। Tax is required to be deducted at such person if the purchase of goods by him from the seller is of the value aggregate of such value exceeding rupees 50 lakh rupees in the previous year. 50 लाख से ज्यादा के परचेजेस करता है अगर, ठीक है ना, और 10 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है उसकी से पिछले साल के अंदर, तभी TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स जो है वो एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब बहुत सारे लोग तो वैसे ही छूट जाएंगे, हार्डली कुछ 5% 7% के आसपास सब लोग बचेंगे, जो कि ऑलरेडी टैन के प्रोविजंस को फॉलो कर ही रहे होंगे किसी ना किसी प्रोविजंस के अंडर। तो बस इस सरकार के लिए ये ट्रैकिंग मैकेनिज्म था, तो उन्होंने इसे ट्रैकिंग में डाल दिया। अब it is also proposed to provide that the provision of this section shall not apply to a transaction on which tax is deductible under any provision of the act. अब इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे अगर और किसी प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स के अंदर ऑलरेडी टैक्स डिडक्शंस हो रहे हैं तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है। या फिर a transaction on which tax is collectible under the provision of section 206C other than transaction to which section 206C 1H applies, that is TCS on sale of goods. अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि जहां पे मान लीजिए ये पर्टिकुलर प्रोविजंस अप्लाई कर जाएंगे, जहां पे अदर प्रोविजंस अप्लाई कर जाएंगे TDS या TCS के, वहां पे ये सेक्शन जो है जो नया आया है अभी ये अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन जहां पे TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स लग रहा है वहां पे TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स ना लग के ये लगेगा, बिकॉज TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स के अंदर एक चीज लिखी थी कि जहां पे इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे किसी दूसरे ट्रांजैक्शन में TDS लग रहा है वहां पे TCS नहीं लगेगा। ठीक है, तो जहां पे आपका TDS का परचेज वाला जो कंडीशन है वो अप्लाई हो गई, आपका TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स रूल आउट हो जाएगा। This means if on a transaction a TDS or TCS is required to be carried out under any provision, then it would not be subjected to TDS under this section. There is one exception to this general rule. If on a transaction TCS is required under section 206(1H as well as TDS under this section is required, then on that particular transaction only TDS under this section shall be carried out. आपका TCS उस पर्टिकुलर प्रोविजन पे नहीं लगेगा, आप कवर होंगे इस TDS वाली ट्रांजैक्शन के अंडर।
अब इन्होंने इसके अंदर भी एक हायर बेसिकली नया सेक्शन, नया प्रोविजन आया है, तो इसके अंदर एक हायर रेट भी डाल दिया है कि अगर आप अपना पैन जो है वो नहीं फर्निश करेंगे तो ये 0.1% की जगह आपको 5% देना पड़ेगा। ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल होंगी 1 जुलाई 2021 से। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं तेजी से। हम लोग डायरेक्ट टैक्स के लास्ट लिम्ब में पहुंच गए हैं और वो है प्री फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। हमें पता है आजकल हम लोग जब भी रिटर्न्स फाइल करते हैं तो हमारी सैलरी, इंटरेस्ट, 26 की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्री फिल्ड आती है। सरकार इस इनिशिएटिव को और ज्यादा आगे लेके जाना चाहती है और उन्होंने कहा है टू फर्दर ईज ऑफ द रिटर्न्स, डिटेल्स ऑफ कैपिटल गेन्स फ्रॉम लिस्टेड सिक्योरिटीज, डिविडेंड इनकम एंड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक्स, पोस्ट ऑफिस विल आल्सो गेट प्री फिल्ड। अब यहाँ पे इशू मुझे जो समझ में आया वो ये है, डिविडेंड इनकम को चलिए आप प्रीफिल कर लेंगे बिकॉज उस पर टीडीएस की ट्रैकिंग आपने डाल दी है। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक्स को भी कुछ हद तक आप कर सकते हैं बिकॉज स्पेसिफाइड बैंक्स है, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं, तो ठीक है प्रीफिल में वो आ जाएगा। लेकिन कैपिटल गेन्स फ्रॉम लिस्टेड सिक्योरिटीज, इसे आप कैसे ट्रैक करेंगे? देखिए हम कभी भी कोई शेयर्स परचेज करते हैं या सिक्योरिटीज परचेज करते हैं और उन्हें बेचते हैं जाके 15 साल, 5 साल, 3 साल बाद। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे भी होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं, हम खरीदते हैं 3 महीने बाद बेच देते हैं, 12 महीने से पहले ही बेच देते हैं, वो लॉन्ग टर्म होते ही नहीं। लेकिन इनकी ट्रैकिंग, इनका कैपिटल गेन सरकार प्रीफिल कैसे करवाएगी? क्या स्टॉक हाउसेस, डिपॉजिटरीज को ये सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को रिले करनी पड़ेगी? क्या उन लोगों को अपने एंड पे फीफो मेथड लगा के जो इंटरेस्ट है या फिर जो कैपिटल गेन है उसे कंप्यूट करना पड़ेगा? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब ये करेंगे कैसे, होगा कैसे? इसके लिए मशीनरीज आएंगी, कुछ आएगा, क्या आएगा वो हम लोग सब देखेंगे अब सरकार कैसे करती है। बट ये कैपिटल गेन फ्रॉम लिस्टेड सिक्योरिटीज, ये तो भाई मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे होगा। हाँ, अगर वो सेम साल में हो रहा है, शॉर्ट टर्म है उसका नेचर या इंट्राडे है, तो आई बेट कि वो हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो अदरवाइज है तो वो नहीं हो सकता। हम लोग जल्दी से अब इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने देखा था इनडायरेक्ट टैक्स बजट में 20-25 सेकंड लास्ट किया बजट स्पीच के अंदर, उससे ज्यादा का मैम के पास बोलने के लिए कुछ था नहीं। बट जब ये हमारा मेमोरेंडम भाई साहब आए हैं 106 पेज के और फाइनेंस बिल आया, तो उसके अंदर हमें पता लगा कि नहीं भाई बहुत सारी चेंजेस करी गई। अब इसके अंदर कुछ चेंजेस हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। मैं और ज्यादा भी करना चाहता था लेकिन अभी टाइम में देख रहा हूँ कि हमारे पास 15 मिनट ही रह गए, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपके साथ 3-4 प्रोविजन जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहली तो जो सबके पेट पे लात पड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के भी और कॉस्ट अकाउंटेंट्स के भी, वो थी ऑडिटेड जीएसटी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नॉट रिक्वायर्ड। सेक्शन 35(5) को रिमूव कर दिया गया, अमेंड कर दिया गया सेक्शन 44 को अकॉर्डिंगली। This section is being omitted so as to remove the mandatory requirement of getting annual accounts audited and reconciliation statements submitted by the specified professional. Now GSTR 9C can be filed without certification. बड़े दुख के साथ दिस अमेंडमेंट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम फ्यूचर डेट। अभी डेट अनाउंस नहीं करी है, फ्यूचर डेट जब वो अनाउंस करेंगे तब आएगा। टैक्स पेयर विल स्टिल गेट वर्क। मेरे हिसाब से मैं इस प्रोविजन में ये चीज कहना चाहूंगा कि भाई उन्हें इस चीज का प्रोविजन का बेनिफिट अभी भी मिलेगा बिकॉज वो 9C प्रिपेयर कैसे करेंगे? सर्टिफिकेशन तो चलिए ठीक है हमसे नहीं करवाएंगे, बट विल बी प्रिपेयरिंग दिस, क्योंकि दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। आप प्रोविजंस, अब एक आम आदमी है उसे क्या पता व्हाट इज हाउ वी आर फाइलिंग द रिटर्न्स, हाउ इज एवरीथिंग। निल रिटर्न फाइल करना एसएमएस के थ्रू, दैट इज अ डिफरेंट कंडीशन, वो हमें सबको समझ आता है कि भाई बहुत इजी चीज है। बट 9C फाइल करना, रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना, दिस इज नॉट समथिंग दैट कुड बी डन। तो मेरी समझ ये कहती है कि हाँ भाई सर्टिफिकेशन तो नहीं करना है, बट ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों के हाथ से बिल्कुल ही काम चला जाएगा। बट यस, रेवेन्यूज के अंदर तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा ही। सेकंड जो अमेंडमेंट ये लेके आए हैं वो लेके आए आईटीसी मैचिंग प्रोविजंस को इन्होंने और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, या फिर मैं कहूं तो स्ट्रॉन्ग के बजाय स्ट्रिक्ट कर दिया। इन्होंने क्लॉज AA इंट्रोड्यूस करा है सेक्शन 16(2) के अंदर, जो अलाउ करेगा अब आईटीसी सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर जहां पे आपके सामने वाले सप्लायर ने आपकी GSTR 1 में जो डिटेल्स हैं वो फाइल कर दी। This clause is being inserted to provide the input tax credit on invoice or debit note may be availed only when the details of such invoice or debit note have been furnished by the supplier in the statement of outward supply yani GSTR 1, and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note. This amendment will act like backing up for the rule of 36(4). भाई इसके अंदर इस प्रोविजन को और स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि नहीं, अब आप अगर उसमें GSTR 1 में आपकी डिटेल्स नहीं है तो भाई आप आईटीसी क्लेम ही नहीं कर सकते। तीसरी जो एक थोड़ी सी मेजर अमेंडमेंट थी वो थी इंटरेस्ट ऑन नेट टैक्स लायबिलिटी। तो प्रोवाइजो लेके आए अंडर सेक्शन 51
is substituted retrospectively लेके आए from 1st July 2017 से. This provision is being amended retrospectively from 1st July so as to charge interest on net cash liability. पहले से लगा दिया इन लोगों ने, ठीक है जी. बाकी इन्होंने ई वे बिल के ऊपर अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो 100% की पेनल्टी हुआ करती थी सेक्शन 129 में, उसे 200% का कर दिया है. साथ में छोटे मोटे और 2-4 कंडीशंस आए हैं. एक्सपोर्ट कंडीशन फॉर सप्लाई टू एससीजी में उनके ऑपरेशंस जो हैं वो ऑथराइज्ड होने चाहिए, तभी आपकी जीरो रेट ऑफ सप्लाई जाएगी. सेक्शन 16 आईजीएसटी के अंदर ये अमेंडमेंट लेके आया. तो ये छोटे छोटे अमेंडमेंट्स थे, हालांकि थे छोटे, बट हम लोगों को जब हम लोगों ने पढ़ा तब हमें पता चला कि जीएसटी में कोई अमेंडमेंट नहीं आया. पहले हम यही सोच रहे थे सब, बट जीएसटी में अमेंडमेंट्स थे और बड़े मेजर बड़े अमेंडमेंट्स थे प्रोफेशनल्स के नजर से. अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेकंड लास्ट लिंब पे, जो है कस्टम्स. कस्टम्स में फोकस रहा बेसिकली रैशनलाइजेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी के अंदर. कुछ कम नहीं किया, कुछ ज्यादा नहीं किया, लाइक मोर और द लेस इट वाज मोर ऑफ रैशनलाइजेशन. एक सेस नया लेके आए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के नाम से, एआईडीसी भी कहते हैं या हम लोग एड सेस कहते हैं, जैसे एआईडी एड सेस. तो ये एक उन्होंने नया निकाला टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट वी कैन प्रोड्यूस मोर व्हाइल आल्सो कंजर्विंग एंड प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर आउटपुट एफिशिएंटली. तो ये बेसिकली फार्मर्स के लिए एक नया सेस गवर्नमेंट लेके आई. अब इस सेस के बारे में गवर्नमेंट का ये कहना था कि ये कोई एडिशनल बर्डन इंपोज नहीं करेगा कंज्यूमर्स के ऊपर. हम लोग जो आपके कस्टम ड्यूटी के रेट्स हैं उन्हें ही कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देंगे कि इस सेस का पैसा उसमें से निकल जाएगा. अब सेस सरकार लाती क्यों है? सेस का पैसा हमेशा स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूटिलाइज होता है एंड सेस उसी पर्पस के लिए ये यूज हो सकता है और किसी पर्पस के लिए भी यूज नहीं हो सकता. तो सरकार ने अपनी जो बेसिक कस्टम ड्यूटी बीसीडी थी उसे उसके रेट्स को थोड़ा सा स्लैश डाउन किया, उन्हें थोड़ा सा रैशनलाइज किया और उस पर्टिकुलर जो रेट आया उसके ऊपर ये एआईडीसी यानी एड सेस लगेगा. तो आपको जो कस्टम ड्यूटी का जो रेट था, जो भी लोग थे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व थे, तो उनके ऊपर वही तकरीबन रेट्स रहेंगे. फायदा मिला गोल्ड और सिल्वर को. गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर जो एक कस्टम ड्यूटी थी वो थी 12.5% की. लास्ट बजट मतलब जुलाई 19 में ये बढ़ा दी गई थी 10% से 12.5%. अब गवर्नमेंट ने इसे 12.5% से 7.5% कर दिया, 7.5%. इससे ऑब्वियसली गोल्ड की जो मार्केट है वो इम्प्रूव होगी एंड हमने देखा कि गोल्ड का रेट भी शार्पली गिरा जैसे ही गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट करी, बिकॉज हमारा जो स्प्रेड है ऑब्वियसली वो बढ़ गया. 48,000 के आसपास एक तोला आपका सोने का आ गया था उस दिन. और तो अब इसमें हुआ क्या है कि 7.5% तो कर दिया है, 7.5% के साथ साथ 2.5% का एआईडी सेस लगा दिया है. उससे आपका जो रेट निकल के आता है वो आता है 9.375%. अब इसके ऊपर जीएसटी भी है, क्योंकि हम पता है गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर जो है जीएसटी भी लगता है. तो अगर आप नटशेल में देखेंगे गोल्ड एंड सिल्वर पे एक्चुअली सरकार ने रैशनलाइजेशन के साथ साथ रेट को कम भी किया है. 12.5% प्लस जीएसटी पड़ता था, तो अब ये टोटली मेरे हिसाब से 12.5% के आसपास कहीं कॉस्ट करेगा इंक्लूडिंग जीएसटी. तो इससे जो है हमारे बेसिकली जो गोल्ड, मैं कहूंगा गोल्ड स्मगलिंग थी 12.5 की वजह से गोल्ड स्मगलिंग बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज आप कस्टम ड्यूटी बढ़ाते हैं. मैं मानता हूँ डेफिसिट फाइनेंसिंग पे इसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, बिकॉज आपके जो गोल्ड इंपोर्ट्स हैं वो घट जाते हैं, बट साथ ही साथ आपकी जो स्मगलिंग होती है वो बढ़ जाती है गोल्ड की. तो अब सरकार ने किया क्या, वापस उसे कम कर दिया, तो स्मगलिंग भी घट जाएगी एंड लोग और गोल्ड परचेज भी कर पाएंगे. सोशल वेलफेयर SWS करके सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है कस्टम ट्रांजैक्शन के ऊपर 10% का ऊपर. हम वो जो 2% का SHEC, 1% का वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, वो सब नहीं लगाते हैं. इन्होंने एक टर्म दे दिया SWS के नाम से, तो सारा का सारा वही लगता है. अब SWS का जो रेट है वो बीसीडी के ऊपर तो लगेगा, लेकिन जो एआईडीसी का कंपोनेंट होगा यानी 2.5% का जो सेस है उसके ऊपर SWS नहीं चार्ज होगा. तो 7.5 के ऊपर SWS लगेगा, बट एआईडीसी के ऊपर SWS नहीं लगेगा. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इस चीज की भी क्लैरिफिकेशन दी है. साथ ही में गवर्नमेंट लेके आ रही है गोल्ड एक्सचेंज, जो कि स्पेसिफिक, अभी भी हम लोग गोल्ड की ट्रेडिंग कर रहे हैं एमसीएक्स में, जो सब लोग कर रहे हैं, अभी भी कर सकते हैं, ई गोल्ड भी खरीद सकते हैं, बट एक स्पेसिफाइड गोल्ड एक्सचेंजेस लेके आ रही है. हम लोगों ने अभी सबके सामने टीवी पे भी बहुत चर्चा में है कि गोल्ड एक्सचेंजेस आएंगी तो एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गोल्ड का वो बदल ही जाएगा. पीपल ज्यादा गोल्ड खरीद पाएंगे, अपनी मर्जी के अनुसार गोल्ड खरीदने पाएंगे कि भाई 500 रुपए का खरीदना, 1000 रुपए का खरीदना, लॉट जो है छोटे हो जाएंगे. तो गोल्ड एक्सचेंजेस भी ला रही है गवर्नमेंट इस बजट में, ऐसा लिखा है. एंड सेबी जो है उसका वो वॉच डॉग रहेगा, मतलब सारा रेगुलेटर जो है वो सेबी रहेगा.
AIDC को ले आए हैं पेट्रोल एंड डीजल के ऊपर भी, पेट्रोल के ऊपर 2.5 रुपए पर लीटर लगाया, सॉरी डीजल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस ऑफ 2.5%, 2.5 रुपए पर लीटर हैज बीन इम्पोज्ड ऑन पेट्रोल एंड 4 रुपए लगा दिया है डीजल के ऊपर। लेकिन कंज्यूमर्स के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन जैसा मैंने बताया आपको, इन्होंने कस्टम ड्यूटी एक्साइज जो है वो उसी प्रोपोर्शन में कम कर दिया, तो जो नेट इफेक्टिव रेट्स थे वो उतने ही रहे। तो उससे इम्प्लीकेशन क्या निकली, सरकार को इस पर्टिकुलर खर्चे के लिए जो पैसा है वो मिल गया। अगर कस्टम में ही बात करूं तो एक प्रोविजन जो मुझे अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, बेसिकली डिस्कशन के लिए अच्छा लगा, दैट वाज कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल फोन इंडस्ट्री के ऊपर कुछ कुछ चीजों पे, जैसे मोबाइल का कैमरा मॉड्यूल होता है या कनेक्टर्स होते हैं या पीसीबी होता है यानी सर्किट जो होता है उसका, उसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो लगा दी है, बीसीडी जो है वो लगा दी है। तो वो पहले नील थी, अब कुछ कुछ चीजों पे 2.5% लगा दी है, एंड ऐसे करके सो ऑन एक लिस्ट है। तो उससे जो आपके मोबाइल फोन्स होंगे वो थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो कस्टम्स के अंदर ये सब कुछ था। लास्ट लिम के ऊपर बढ़ रहे हैं फटाफट से, एक बार देख रहे हैं बस कंपनी एंड फाइनेंशियल मैटर्स जो अदर थे। अब कंपनी मैटर्स के अंदर अगर हम देखें तो भाई मेरा सबसे असेंशियल जो मैं ट्विटर पे चीख चीख के सरकार से मांग रहा था कि भाई आप बजट में कुछ ना दें, बट जो गवर्नमेंट के पोर्टल्स हैं उन्हें ढंग से चला दें, हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे लिए काम करना जो है वो इम्पॉसिबल होता जा रहा है। तो इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया ऐलान किया कि ड्यूरिंग द कमिंग फिस्कल ईयर 21-22 में विल बी लॉन्चिंग डेटा एनालिटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग ड्रिवन MCA 21 वर्जन 3.0। यानी इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और बोला कि हम लोग आपके लिए एक रिवैम्प्ड वर्जन लेके आएंगे MCA पोर्टल का, जहां पे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग चलेगा, एंड साथ में आप उसके अंदर ई स्क्रूटनी, ई एडजुडिकेशन, ई कंसल्टेशन एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट भी कर पाएंगे। बड़े बड़े वर्ड्स लिख रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें लिख रहे हैं, जब पोर्टल आएगा तब देखेंगे, बट एटलीस्ट गवर्नमेंट ने इस चीज को कंसिडर जरूर किया है। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा कि कंपनीज एक्ट 2000 के अंदर बहुत सारे जो ऑफेंसेस थे उन्हें कंपाउंडेबल बनाया गया, यानी डीक्रिमिनलाइज किया गया। यानी अब आप प्रोसिक्यूशन में तो हैं, लेकिन आपके ऊपर इम्प्रिजनमेंट के जो सीवियर एक तरह से क्रिमिनल चार्जेस हैं वो नहीं लगेंगे जो डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर। ऐसा ही अब सेम जो पॉलिसी है वो लेके आ रहे हैं LLPs के पार्टनर्स के ऊपर या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के ऊपर। तो अगर आप LLP में डायरेक्टर या पार्टनर हैं और आपके ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटीज जो हैं वो अराइज हो सकती थी ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ LLP प्रोविजंस, ठीक है, LLP एक्ट प्रोविजंस, तो अब आपके लिए भी ये सारे जो प्रोविजंस है इन्हें सरकार डीक्रिमिनलाइज कर रही है, तो वो कंपाउंडेबल हो जाएंगे बेसिकली। एक बड़ा चेंज जो इन लोगों ने किया जो कंपनी सेक्रेटरीज को बहुत बिगर वे में अफेक्ट करेगा, दैट इज इन्होंने स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन जो है उसको थोड़ा सा चेंज किया है। स्मॉल कंपनीज डिफाइंड थी पहले जिनकी कैपिटल थी नॉट एक्सीडिंग 50 लाख एंड टर्नओवर थी नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़। अब इन दोनों लिमिट्स को इन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, जहां पे कैपिटल ये लोग कह रहे हैं कि नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ होगा एंड टर्नओवर जो है वो नॉट एक्सीडिंग 20 करोड़ होगी, वो बन जाएगी हमारी स्मॉल कंपनी। यानी 2 करोड़ तक की कैपिटल एंड 20 करोड़ तक की टर्नओवर अगर किसी कंपनी की होती है तो सरकार उसे मानेगी स्मॉल कंपनी। अब जब वो उसे स्मॉल कंपनी मानेगी तब बहुत सारे कंप्लायंसेस जो रहेंगे वो उस कंपनी को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर मैं सिंपली बोलूं तो आपको AOC 4 फाइल नहीं करना, MGT 7 पे सर्टिफिकेशन नहीं करिए, सॉरी फाइल तो करना पड़ेगा बट डायरेक्टर सर्टिफिकेशन से काम बढ़ जाएगा, आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आपका INC 21, 22 और MGT 14 सबके ऊपर जो सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है प्रोफेशनल्स की, वो सब चली जाएंगी, आप खुद से ही ये सारा काम कर पाएंगे जो डायरेक्टर्स हैं कंपनियों के। तो प्रोफेशनल्स के ऊपर थोड़ा सा असर आएगा इस चीज का, बट कंपनीज के लिए हाँ कंप्लायंस थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एक बहुत ही बड़ा मूव OPCs के लिए गवर्नमेंट लेके आई है। उन्होंने बोला है कि उन्होंने देखा है कि स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स जो है वो OPC के रूट से बहुत सारे आ रहे हैं, तो उसके लिए इन्होंने बहुत इंसेंटिवाइज दिया है OPC को और कहा है कि कोई नॉन रेजिडेंट भी है इंडिया में, इवन वो बंदा भी OPC जो है इंडिया के अंदर शुरू कर सकता है। सेकेंडली उन्होंने जो इसकी रेजिडेंशियल डेज की लिमिट होती है उसे 182 डेज से घटाकर 120 डेज कर दिया। तो बहुत ही वेलकम स्टेप्स हैं OPCs के लिए, और कह रहे हैं कि अगर आप OPC को प्राइवेट लिमिटेड या LLP में कन्वर्ट भी करना चाहें तो उसके लिए एक इजी मैकेनिज्म देंगे। तो बेसिकली OPCs के लिए एक नया पूरा एक मार्केट सेट लेके आई है गवर्नमेंट इस वाले बजट के अंदर, और NCLT के प्रोविजंस को बोला है कि हम लोग ई कोड्स और ई एजुकेशन के सिस्टम्स लेके आएंगे, MSME के लिए कोई स्पेशल फ्रेमवर्क लेके आएंगे। तो हम एक तरह से जैसे इनकम टैक्स में हम लोग फेसलेस करते जा रहे हैं चीजों को, या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक करते जा रहे हैं, डिजिटल करते जा रहे हैं, वैसे कंपनीज एक्ट में भी NCLT में भी हम उसको कर पाएंगे।
एक फाइनेंस के अंदर जो फाइनेंस मॉड्यूल है उसके अंदर अगर देखें तो ये कह रहे हैं कि हम सेबी एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट की प्रोविजन और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2007 की प्रोविजंस को कंसोलिडेट करके एक नया कोड लेके आएंगे जिसका नाम होगा सिक्योरिटीज मार्केट कोड। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा जब भी ये आएगा, बिकॉज ये एक नया प्रोविजन बन जाएगा एक तरीके से। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की नजर में सरकार कह रही है कि दे विल इंट्रोड्यूस एन इन्वेस्टर चार्टर, ठीक है, जिसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की सारी प्रोडक्ट्स होंगी। एंड एक उन्होंने एफडीआई लिमिट इंक्रीज करी है अपने इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, जो कि 49% थी पहले, अब एफडीआई उसमें अलाउ कर दी है 74% तक। लेकिन उसके अंदर भी जो आपकी ओनरशिप जरूर ग्रांट कर दी है, लेकिन उसके अंदर जो आपकी मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे, आपको जो कंट्रोल रहेगा वो आपका रेजिडेंट इंडियंस का ही रहेगा। तो कुछ कंडीशंस के साथ बेसिकली लेके आए। और एक बहुत ही जबरदस्त धमाका प्राइवेटाइजेशन, मैंने आपको बताया गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान भी मतलब जो एक्सटेंड करने वाली ही है। साथ ही में आ रहा है आईपीओ एलआईसी का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्टर बन के बैठा है, अब इसी खुद का ही एक आईपीओ लेके आ रही है गवर्नमेंट 2021 में, 2021-22 में, फाइनेंशियल ईयर में। और प्राइवेटाइज करेगी 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 21-22। ये सारे प्रोविजंस फाइनेंशियल सेक्टर्स में। अब हम लोग सारा अपना जो बजट का डिस्कशन है जो मेरे को आप लोगों के साथ करना था, आई एम डन विद दैट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी नाउ। Aishna, you can come up. Yeah, hi. So thank you so much for such an insightful session, and आपने mostly सब कुछ ही cover कर दिया, I tried to direct, cover everything. indirect, and then we were talking about corporate law as well. So yeah, so there have been many questions. I've just been copy pasting them. One person has asked, so no benefits to employees and individuals in this budget? नो बेनिफिट्स, बिकॉज आप बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आप ही गलत एक्सपेक्ट कर रहे थे। इतनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस के अंदर ऑलरेडी आपको टैक्स इंसेंटिव्स लास्ट बजट में सरकार ने दे दिए थे। यू वर गिवन द एग्जेम्पशन ऑफ बाय वे ऑफ द रिबेट एंड 5 लाख तक की आपकी इनकम छोड़ दी थी। एंड सेकेंडली आप लोगों को और भी बहुत सारे जो इंसेंटिव्स थे पिछले बजट में मिल गए थे। नाउ सीइंग दिस सिचुएशन, और ज्यादा बेनिफिट्स देना सरकार के लिए ही मुश्किल था आई गेस, एंड बिकॉज इट वाज डिफिकल्ट ईयर फॉर एवरीवन। सो चलिए ऐसा ही सोच लीजिए कि इस बार सरकार ने आपसे कुछ मांगा नहीं एडिशनली, कम से कम इसी चीज की खुशी होनी चाहिए, चलिए आपको नए इंसेंटिव्स नहीं दिए। सो दिस इज अ गुड बजट, मतलब मेरे हिसाब से। एंड दैट इज व्हाई इवन द स्टॉक मार्केट्स हैव रिएक्टेड सो पॉजिटिवली टू देम, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ स्पेसिफिक प्रोग्रेसिव बजट। What are your views on scrapping of GST audit? स्क्रैपिंग ऑफ जीएसटी ऑडिट, भाई अब एक प्रोफेशनल से आप पूछेंगे कि अगर हमने आपकी सर्टिफिकेशन बंद कर दी है तो आपको कैसा लग रहा है, तो ठीक है मुझे बुरा जरूर लग रहा है, बट माय डैड ऑलवेज यूज्ड टू से दैट देयर इज इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर अ ट्रू प्रोफेशनल। उसकी जो कदर है वो कभी खत्म नहीं होती है। एक सर्टिफिकेशन हमारे हाथ से चली गई तो क्या हुआ, देयर आर मल्टीपल कोड्स ऑफ नई चीजें निकल के आएंगी। अब आप देखिए सिक्योरिटीज मार्केट कोड, एक नया कोड आ रहा है, जैसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स कोड की बात करते हैं, हो सकता है उसमें सीएसईएस का कुछ रोल नया निकला है, या फिर हो सकता है हम लोगों के लिए यहाँ से ऑडिट वापस ले लिया, एक और रिटर्न निकाल दे सरकार। तो देयर आर इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज जो आती रहेंगी जाती रहेंगी, एंड वी शुड स्टे विद व्हाटएवर द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू। वो लोग भी ध्यान रखेंगे दैट ऑब्वियसली सीएसईएस का जो भी गुड बेस्ट टेक केयर वो करते हैं अपने प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। तो काम तो हमसे ही कराएंगे, अभी भी सब लोग 9C भरवाएंगे तो हमसे, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी हमसे ही मंगवाएंगे। ठीक है आपके साइन नहीं लग रहे हैं, 10-15-20 हजार रुपए कम मिल जाएंगे, बट दैट इज फाइन, कोई बात नहीं। आई थिंक दैट इज नॉट, मतलब फॉर्चुनेट तो नहीं है बट ठीक है, इट्स ओके, हम लोग भी समझते हैं सब कुछ। And what if we talk about that from the taxpayer side? Then I think it's a good thing. Yes, if I ask you आइशना कि आपके ऊपर से हमने कंप्लायंस का बर्डन हटा दिया है, आप इस चीज के 10,000 रुपीज पे कर रहे थे, नाउ यू विल बी पेइंग निल, तो आपको कैसा लगेगा? आई एम श्योर यू विल बी स्माइलिंग, एंड दैट इज द आंसर टू द टैक्स पेयर्स आल्सो। What is your view on income tax rebate? इनकम टैक्स रिबेट, तो इनकम टैक्स रिबेट अब किसकी बात कर रहे हैं स्पेसिफिक? जो 87A का जो पिछले साल हमें इनकम टैक्स रिबेट था, तो इनकम टैक्स के स्लैब्स और रिबेट्स के साथ तो कोई छेड़छाड़ बिल्कुल करी ही नहीं है सरकार ने।
एज इट इज, जो था जैसा था पिछले साल वो अभी भी है। आपके पास इस टाइम एक न्यू टैक्स रिजीम है, आपके पास ओल्ड टैक्स रिजीम है, उसके अंदर आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। 5 लाख रुपए तक का स्लैब है, एक तरीके से 12,500 रुपए का रिबेट है आपके हाथ में। और भी 80G, 80D, 80C की नंबर, मतलब इस बार जो हमने रिटर्न्स फाइल करे हैं, मैंने बहुत लोगों का टैक्स बचवाया लिटरली। उनकी इनकम जैसे 5,05,000 थी, 5,000 रुपीज डोनेशन एंड 12,500 का रिबेट एंजॉय करा उन लोगों ने। तो अच्छा काम, नोबल कॉज के लिए एक तरह से उसके अंदर पैसे भी दिए एंड यू हैव एंजॉयड अ टैक्स रिबेट आल्सो। सो रिबेट के मामले में इट हैज बीन सेम। तो मेरे हिसाब से ये वाली चीज तो रॉकिंग रहेगी कि एटलीस्ट उन्होंने ये रिबेट को विड्रॉ नहीं करा। One participant has shared their opinion, I believe. I guess they're asking for your comments on that. They have not utilized high net worth companies to put taxes. Even top net worth people told put taxes, and they are ready to pay taxes. But government is not utilizing. But they have put agri cess on common man, which is not required. बेसिकली अगर आप इस चीज को थोड़ा सा समझें तो आपकी बात भी बिल्कुल सही है कि उन लोगों ने उस चीज को चैनलाइज नहीं करा है। बट अगर आप देखें, जो आप कॉर्पोरेट टैक्स की बेसिकली बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स जो सरकार ने लास्ट ईयर रिड्यूस कर दिए थे, सो दैट हैड अ प्रीमाइस कि हमारा वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा, हमारी टर्नओवर जो कलेक्शंस हैं वो ज्यादा बढ़ेंगी, बिकॉज हम कम से कम 100 या 200 या थाउजेंड्स में नई फॉरेन कंपनीज इंडिया में लेके आएंगे। अगर आप स्प्रेड की बात करें, अगर हमारे पास 1000 न्यू कंपनीज आ जाती हैं और वो 15%, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए 15, 17.5, 18, 22% टैक्स भी हमें देती हैं, तो वो बहुत ही एक वेलकम मूव था। अब हुआ क्या है, लास्ट ईयर के अंदर जो सिनेरियो रहा है वो सबके लिए बड़ा मतलब एक जैसा हम किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तो वो पिछला साल तो एक तरह से खराब ही हो गया। अब HNIs की अगर आप बात करें, अगर आप उनसे पूछें, आप कह रहे हैं कि वो ज्यादा टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल फ्रंट पे बात करें तो वो लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं है। एंड दे आर द चीफ और द मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर इज फॉरेन। अपने मार्केट्स के अंदर जो पैसा डाला हुआ है, दे हैव इन्वेस्टेड द हाईएस्ट मनी। अगर उनके ऊपर आप कोई भी प्रोविजन डालते हैं या लगाते हैं तो उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे डेफिनेटली एकदम ठा करके आएगा। एंड उससे होगा क्या, आप सरकार ने प्राइवेटाइजेशन करनी है, डिसइन्वेस्टमेंट करनी है, IPO लेके आना है। अगर आप कुछ सीरियस प्रोविजंस लगा देंगे HNIs के ऊपर या नॉन रेजिडेंट्स के ऊपर या फॉरेनर्स के ऊपर या कॉर्पोरेट कंपनीज के, फॉरेन कंपनीज के ऊपर, वो लोग विड्रॉ करेंगे पैसा, वो विड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉप करेगा, उनके IPO और प्राइवेटाइजेशन के प्लान्स पे थोड़ा थोड़ा पानी फिरेगा। तो सब कुछ सोच के यार सरकार प्लान करती है। आप टीम में देखिए कितने एक्सपर्ट्स हैं, मतलब वी आर जस्ट एनालाइजिंग व्हाट दे हैव रिटन, हाउ दे हैव रिटन, व्हाट एवर दे हैव सीन, हाउ दे हैव प्रिपेयर्ड, ये तो हमें कुछ पता ही नहीं। हम तो ये एनालाइज कर रहे हैं यहाँ बैठ के आप और हम, कि भाई इसमें लिखा ये है, कैसे लिखा, कैसे बनाया, पॉलिसी मेकिंग क्या थी। सो मोदी गवर्नमेंट इज परफॉर्मिंग रियली गुड। आई गेस हम लोगों को, सरकार को 1-2 साल सपोर्ट देना चाहिए अपनी तरफ से कि नहीं आप जो भी लेके आ रहे हैं ठीक है, वी आर विद यू, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट। एंड आप ये चीज एक्नॉलेज भी करेंगे कि आप सब लोग कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं दिया। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ आपके साथ, सरकार ने कुछ नहीं दिया, लेकिन कुछ लिया भी नहीं है। कोविड सेस एक ऐसी चीज थी जो सब लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि सब पे आएगा, ना कि वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स पे आया, ना ही वो फॉरेन की किसी कंपनीज पे लगाया सरकार ने, और ना ही एक आम सिटीजन पे लगाया, ना ही किसी कमोडिटी पे लगाया। और कस्टम्स में जहां आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने AID सेस वो लोग लेके आए हैं, तो दैट इज बेसिकली रैशनलाइजेशन। उन्होंने आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं डाली है, दे हैव रिड्यूस द कस्टम ड्यूटी, दे हैव अप्लाइड द AIDC। तो आप देखिए 12.5% जो गोल्ड के ऊपर कस्टम था, दे हैव रिड्यूस्ड इट टू 7.5 प्लस 2.5 AIDC, 9.375, 10 से भी नीचे कर दिया यार उन्होंने। सो अगर आप सब कुछ टोटलिटी में देखेंगे, इट इज अ लाइक पॉजिटिव मूव। मैं लाइक आपकी बात, आई totally respect your point of view, ठीक है, but even whatever the government is doing, it's doing in the correct side as per me. Is there any change on basic salary for PF contribution? हाँ जी, अब इसकी बात करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किसी ने पूछा है। तो इसमें आपकी बेसिक देखिए, 1 अप्रैल 2021 से प्रपोज है कि नया वेज कोड आने वाला है। अब अगर नया वेज कोड आ जाता है, उसके अंदर दे आर एक्सपेंडिंग द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड बेसिक सैलरी। अगर बेसिक सैलरी के मायने बढ़ जाएंगे तो आपकी जितनी भी एग्जाम्पशंस, डिडक्शंस हैं, वो सारी बेसिक सैलरी बेस्ड होती हैं।
तो वो 12% है, जैसे आपकी पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं या फिर आपका कुछ भी है, सो दैट वुड बी ग्रेटली इम्पैक्टेड। और अगर आप देखें अभी ये जो नया प्रोविजन लेके आए हैं, इसके अंदर दे आर सेइंग कि अगर आपकी पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो 2.5 लाख रुपए साल से ज्यादा की हैं, ठीक है, तो वो उस पे जो इनकम आएगी दैट वुड नॉट नो लॉन्गर बी टैक्स एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो अगर आप इन चीजों को टोटलिटी में देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपको जरूरत है प्लान करने की, एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करने की, जो कि आपको ये सब कुछ प्रॉपर वे में बना के दे कि आप कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट कीजिए एंड कैसे आप मैक्सिमम टैक्सेस का बेनिफिट, देखिए मैं बेनिफिट बोलूंगा, मैं अवॉइडेंस भी नहीं यूज कर रहा, इवेजन भी नहीं यूज कर रहा, आप कैसे प्रोविजंस का बेस्ट वे में जो है बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। टैक्स तो देखिए सरकार को पे करना ही है आपने इन एनी केस, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। सैलरी वाले सब परेशान रहते हैं कि यार आप पैसा सैलरी वाले के लिए कुछ बचता ही नहीं, बिजनेस वाले डिडक्शन ले जाते हैं, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन अगर आप उसी को ही, एक गौरी मैम का ही एक लेक्चर मैंने बहुत पहले देखा था, उन्होंने बताया था कि आप अपने सैलरी पैकेज को कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं। अगर आप उनका वो वीडियो सुने यूट्यूब पे तो आपको पता चलेगा कितने सारे और डिडक्शंस हैं जिन्हें आप लेके एग्जेम्पशंस को क्लेम करके अपने सैलरी पैकेज को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, एंड हाउ कैन यू अवेल द बेस्ट आउट ऑफ द सैलरी ऑल्सो। तो आपके कोई पर्सनल डाउट भी हो, लाइक इफ यू वांट टू आस्क मी कि मैं कैसे स्ट्रक्चर करूं, तो आप यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, मैं आपको यूट्यूब पे ही लाइक उसकी चैट में ही रिप्लाई बैक करूंगा डेफिनेटली, या आप मेल भी कर सकते हैं, सीए क्लब तो है ही है अपने साथ, आप वहां पे कमेंट डालिए, आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जो चेंज है, ये जो नया ये पीएफ वाला इन्होंने प्रोविजन लेके आए हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग तो है ही है, जिनकी सैलरी ज्यादा है उनके लिए तो डेफिनेटली। Someone has asked, what about faceless scheme in income tax? फेसलेस स्कीम इन इनकम टैक्स गौरी मैम का टॉपिक था, आपने उनसे क्यों नहीं पूछा पहले? बट दैट इज फाइन, चलिए आप पूछ रहे हैं मेरे से फेसलेस स्कीम। तो देखिए आप, हम फेसलेस असेसमेंट्स वगैरह की बात कर रहे हैं आजकल सब लोग। अब कोविड के सिनेरियो में सब कुछ डिफिकल्ट होता जा रहा है, इवन गोइंग टू द आईटीएटी अप्रोचिंग द कोर्ट्स हैज बीन वेरी, इट्स गोइंग ऑन डिफिकल्ट। सेकेंडली जो इशू हम लोगों को आता था दैट वाज लाइजनिंग, जिससे गवर्नमेंट कंसर्न थी कि आप अगर एक पर्टिकुलर ऑफिसर के पास अपना केस लगाएंगे, अगर हम उसके पास जाते हैं अपना केस को मतलब उसकी सुनवाई करने के लिए, तो यू कुड लाइन इन, आप लोग आपस में कुछ ना कुछ साम दाम दंड भेद बढ़ाएंगे एंड जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है उस पर कुछ असर है। सो फेसलेस असेसमेंट जो स्कीम्स जो ये लेके आए हैं, दैट इज बेसिकली फॉर द ट्विन बेनिफिट ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड सीइंग दैट द प्रोविजंस ऑफ द टैक्स आर परफेक्टली कंप्लायंट। अब आपको पता ही नहीं है आपको कौन एक्सेस कर पा रहा है, कौन किसके पास आपका जा रहा है। तो फेसलेस असेसमेंट, इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, हम लोगों का फर्स्ट को रिजल्ट आया, बहुत सारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने, यंग प्रोफेशनल्स के लिए फेसलेस डिजिटल और ये सारे जितने भी मीन्स आ रहे हैं, दे आर गिविंग यू इनॉर्मस बेनिफिट। आप लोग प्रोविजंस को अच्छे से पढ़िए, सारा कुछ देखिए, एंड इवन यू कैन फाइट द केस एट आईटीएटी सिटिंग एट योर होम या एट योर ऑफिसेस। तो मैं तो फेसलेस असेसमेंट को बहुत ही पॉजिटिव नजर से देख रहा हूँ सबके लिए ही इनफैक्ट। There's one thing in indirect taxes, that the old gold for which the customers go for selling in cash or for exchange, in this case, which is wise to do, RCM or exempt? This is not our budget discussion topic. I would suggest you please write me an email for the same. I would definitely reply. But दूसरे लोगों के questions ले लेते हैं जो कि इसमें like they are more relevant. I suggest. Any rules or changes in SCZ, export, IGST and GSTR 1 return? ठीक है, तो अब इसके अंदर हम देखें, अगर आप आईजीएसटी की बात करें, देयर हैज बीन चेंज कि जो आपका निल रेटेड सप्लाई जाती थी सेक्शन 16 के अंदर, उसमें इन्होंने बोल दिया है कि उसका जो ऑपरेशन होना चाहिए उस एसईजेड का, दैट शुड बी ऑथराइज्ड। अगर हम लोग ऑथराइज्ड ऑपरेशन की बात करें तो दैट शुड बी, मतलब उस पर गवर्नमेंट का स्टैम्प होना चाहिए दैट इट हैज बीन ऑथराइज्ड। उसी केस में आपकी वो जो सप्लाई जाएगी दैट वुड बी निल रेटेड, या फिर उसका जीरो रेटेड सप्लाई जिसे हम कहते हैं वो जाएगी। अगर इसके अलावा केस बनेगा आपका, आप एसएसजी को सप्लाई भी कर रहे हैं बट दैट इज नॉट ऑथराइज, तो उस केस में आपकी जीरो रेटेड सप्लाई की जो एक कंडीशन थी वो सरकार ने इस वाले बजट से हटाई है इस प्रोविजन के अगेंस्ट। तो इस चीज का ध्यान हमें जरूर रखना पड़ेगा। जीएसटीआर 1 में करें तो जीएसटीआर 1 में एज सच कोई इस पर्टिकुलर प्रोविजन में मुझे कोई चेंज नहीं लगा है। सेकेंडली मैं ये कहूंगा कि जीएसटी के अमेंडमेंट्स तो पूरे साल एक महीने में, एक वीक में इतने सारे आ जाते हैं दैट बजट में इन्होंने डाला कुछ कैसे, आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, एंड सर्टिफिकेशन हटा दी, ठीक है उसमें, चलो कोई बात नहीं। तो
लेकिन इतना सब कुछ आ जाता है ऑलरेडी, तो देर इज नो मच स्कोप लेफ्ट कि हम लोग और किसी चीज के बारे में बात करते रहे। और अभी आप देखिएगा 1 अप्रैल आने तक भी आपको जीएसटी में बहुत सारे फेरबदल देखने को मिलेंगे। अभी ये कोई बजट आ गया तो ये खत्म नहीं हो गया, हो सकता है जो इन्होंने प्रोविजंस इंट्रोड्यूस करे हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ इशू आए, इसे स्क्रैप कर दें, या फिर पोर्टल अच्छे से ना चले तो वो भी स्क्रैप हो जाए। तो देर आर उसके अंदर तो चेंजेस अपने चलते ही रहेंगे जीएसटी के। Someone has said that there is problem of effective communication in faceless scheme. देखिए अब वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर वेबिनार। अब जब गौरी मैम वाज टेकिंग दिस वेबिनार, बहुत सारे थोड़े बहुत लैग्स आ रहे थे इंटरनेट एफिकेसी की वजह से, एफिशिएंसी की वजह से, हर चीज़ की वजह से। तो प्रोज एंड कॉन्स हमेशा साथ साथ इनलाइन चलते हैं। कनेक्टिविटी इज जेन्युइनली अ प्रॉब्लम, जो आप कह रहे हैं दैट इज अ मेजर इशू। हम लोग ई असेसमेंट या इनफैक्ट हम लोग मैंने जो प्रोसीडिंग्स होती हैं कोर्ट की अभी रिसेंटली अटेंड करी, तो उसके अंदर मैंने भी फील किया दैट देयर आर लैग्स, बिकॉज आप मान लीजिए यूज कर रहे हैं 100 Mbps, वो यूज कर रहे हैं 4 Mbps, तो देयर वुड बी लैग्स। तो आप धीरे धीरे करके एवरीथिंग वुड बी बैक ऑन ट्रैक, ठीक है। इसके लिए भी यू हैव रेज्ड अ वेरी गुड पॉइंट। अब इसके लिए हो क्या सकता है दैट योर इनकम, देखिए आपकी जितनी कम्युनिकेशन तो हो गई है दैट इज फाइन। अब आपके इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर दे कैन राइट वट एवर दे वॉन्ट टू राइट एडिशनली, और उसका आप जवाब दे सकते हैं एक तरह से। दैट कुड बी अ ऑल्टरनेटिव टू दी फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस कम्युनिकेशन। तो ये चीजें हो सकती हैं। आप गवर्नमेंट को देखिए, आप ट्विटर पे अगर आप लोग हैं, आप ट्विटर पे गवर्नमेंट को अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिखिए, एंड आई अश्योर यू दे आर लिसनिंग। इवन इफ दे आर नॉट रिप्लाइंग, दे आर लिसनिंग। बैकड्रॉप में अभी आप एमसीए की बात कर रहे हैं, हम 3.0 की, मैं रोज लाइक आई एम डेली आई वाज राइटिंग फ्रॉम प्रीवियस 10-15 डेज कि भाई आप एमसीए को ठीक करो, एमसीए ठीक करो झटपट। मैं एक वो चला रखा था हैशटैग अपना। नाउ दे हैव इन दिस बजट दे हैव ब्रॉट दिस कि हम ला रहे हैं भाई एमसीए 21 3.0। सो गवर्नमेंट करती है। आप लिखिए जो भी आपको इश्यूज आ रहे हैं, एंड दे विल डेफिनेटली रिजॉल्व इट। तो आप उनको सजेस्ट भी कर सकते हैं अपनी तरीके। जैसे आप मान लीजिए आप कह रहे हैं दैट आपको कम्युनिकेशन में इशू आ रहा है, नो डाउट आ रहा होगा, हम लोगों को सबको ही आता है। इस वेबिनार में इशू आ रहा है तो उसमें तो आएगा ही आएगा, बिकॉज गवर्नमेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी इज सुपर्ब, वो तो हम सबको ही पता है, एमटीएनएल एंड बीएसएनएल रॉक्स। तो वो तो इशू आएंगे ही, बट we have to find out an alternative to everything than to always cursing things. We have to find a solution for it. तो यही मेरी एक छोटी सी एडवाइजरी रहेगी। ये बेसिकली मेरा व्यू नहीं है, हम लोगों के पेरेंट्स हम लोगों को सिखाते हैं दैट आपको सोल्यूशन ढूंढना है, वो नहीं बताना कि भाई प्रॉब्लम क्या है। आप लिखिए गवर्नमेंट को, वो डेफिनेटली आपके एक्शन पे आपको एक रिएक्शन आएगा ही आएगा सरकार का, चाहे अगले बजट में आ जाएगा, इंटरिम कुछ निकाल दें, कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा। Okay, so there are 1-2 more questions, but I think they're not related to the topic. I think we can end the session now. We are already 15 minutes late. Minutes delayed, yeah. I just banged on to things like I went a little faster with IGST, customs and company law. I hope there was no much trouble understanding the things, but I'm so sorry. मैं time देख रहा था, 15 मिनट बचे थे, and we were left with 3 more topics. So कुछ भी आपके doubts होते हैं, you can always write in the YouTube जो आपकी chat चल रही है हम लोगों की live. So you can write up there. You can send emails also. ठीक है, तो हम लोग सारी जो आपके डाउट्स होंगे वो भी ले लेंगे, एंड वी आर ऑब्वियसली होपिंग फॉर अ मच डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दिस बजट इन कमिंग फ्यू डेज, जब हम इसको पूरा 100% डिकोड कर लेंगे सारे एनालिसिस के साथ। अभी भी लाइक वी हैव आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू डिकोड इट टू द हाइएस्ट पॉसिबल टाइम, क्योंकि कल आया है, आज हम लोग ये सेशन कर रहे हैं, तो आई हैव ट्राइड, लेकिन इसको और ज्यादा अच्छे से करेंगे, एंड वी विल बी राइटिंग मेनी आर्टिकल्स आल्सो ऑन दैट. So keep following CA Club India for the same. And thank you so much, Aishna and CA Club India, for inviting me for this wonderful session. Thank you so much, everyone, for listening. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you so much to Gauri as well, and to you as well, Ujjwal, because the budget just came in yesterday. So we had really less time, but even in that time, I think we've covered the major direct and indirect tax proposals. So guys, this was our session on the decoding of Union Budget 2021. And thank you so much for participating with us today, and have a good day, everyone.